आईआईटी का छाप मुझे मिला, लेकिन नौकरी जो मुझे मिली थी had nothing to do with that. Someone asked me 20 years back, what will you do after MBA? I will do another MBA. 3000 4000 years ago तक्षशिला पहले बना था, वहाँ भी यही कॉन्सेप्ट था. सब लोग कॉलेज थोड़े जाते थे, वो लोग जाते थे जिनको अपने को एक्सप्लोर करना था. I have a all boys school. My daughter goes to a co-ed. I believe there are advantages to both the school of thinking. But what is your view as an educator? मेरा मानना है कि अगर आप इंडिया में हो तो कॉलेज एजुकेशन जरूरी है. So welcome back to another episode of the Living Pod by Saurabh. And every episode, every podcast getting interesting, bigger, bolder, and for me personally, more tasks. But I'm loving this task because the kind of guests we are getting and the kind of profiles we I personally get to talk, I never dreamed of, and I guess, being an educator or at least a pseudo educator, if someone asked me 20 years back, what will you do after MBA? I will do another MBA because the life is lifelong learning, especially in today's world. I was reading this article on World Economics Forum, wherein if you're not learning every day, you are getting redundant probably every day with the AI coming and not. So we can talk about this a lot, and we'll do it on the episode. So allow me to introduce the guest today. Not that he need any introduction. See, when my team suggested that we should get doctor, I would not say the name till he introduced himself, but I was like, why will he come to us? He's such a he had done so much, not only for himself but also as a society as a large. He's an educator, reformist. Now he building or already built one of the world class university in India. He been a entrepreneur. He comes from a city which is generally known for politics and educators and researchers, but would love to learn how he got into entrepreneurship, and then from entrepreneurship to educator and what not, right? So, sir, first of all, welcome to Thank the you. Living Pod. Thank you so much for coming over. Thank you. I don't know. I have done some good deeds, because you all been coming to my small office and come all the way. So at time I need to pinch myself that you know um something what's happening, right? So I would start from what make you agree, to I'm not a podcaster, I'm not an orator, I don't have large following, I'm just a builder, or I would say entrepreneur who is trying to build something to education, right? But when you got our invite, why you said yes, and that was a very thumping yes, you like. In fact, another thing which I would like to suggest that or say, the more people are meeting and like how tough it will be to interact with them, and you guys are so smooth, so I mean so easy, and I can see that there's a trend why people become so humble, because this is a question I'm asking the third time, and I starting with this way, but when I meet you I'm like I have no other option but to ask that how can you be so humble when you have thousands of crores, leave it of money, the kind of impact and people you have been, rubbing shoulders on a daily basis. What makes you so humble and accessible? You want to start with your introduction or answer You anything? tell me where I should Wherever you start. sir, wherever. Uh, I'm Pramath Raj Sinha, and I guess people know me best for my involvement in Ashoka University and the Indian School of Business. The city you are referring to is Patna, and that's where I'm from. I think that connects to what you said about being humble. I don't think I'm trying to be humble, or I think you're referring to all your guests, not just me. I don't think people are. If you try to be humble, then you clearly don't show humility. People see through that. So you have to be genuinely humble, if or try to be genuinely humble if people think you are humble. But somebody told me this a long time ago, and it has always stuck with me, that leadership is about never forgetting where you come from. And it's a cute one liner, and there are many one liners about leadership.
but it is one that has always struck me, that at least it resonates with me because I can never forget where I've come from, and I always see myself as that small boy, running around in my half pajamas and half kurta that my mother used to stitch for us, and everything else happened, but uh, it hasn't really stuck. It's there, but when I get a request from somebody like you, I don't see what your net worth is or how big your company is. Well, for one thing, one smart thing you're doing is asking friends to recommend friends, right? So Sanjeev Bikhchandani messaged me. I happened to be that day at his home when you were interviewing him, so that reference clearly helps. I have a lot of respect for Sanjeev. We are very close, yeah. and then when he says, Pramath, talk to Saurabh, then I have to talk to you. But aside from that, I think the way in which you asked, or I think I still may have made some excuses that I'm busy, or these days I say, look, I've been on so many podcasts, ab chhod do, kya bolunga naya, which you don't already know or which people already know, stale ho gaya hu main. So I think the kind of, I don't remember exactly, but most likely however you responded, it sounded like you were being honest, you were building something, and we are all builders, and that's the way you connect. It's not on your success of your business that you connect. You connect on the fact that, look, we are all struggling entrepreneurs. And entrepreneurship requires giving it everything. You are doing that by doing this podcast. Through this podcast, maybe I'll help you as a fellow entrepreneur, and that's all I was looking for. I don't know about your other podcast guests, but I suspect it's similar. Same. That ऐसा लगता है there is a certain kinship when another entrepreneur, you're not a heavy media celebrity guy who's trying to promote himself. There are also those podcasters where it's really about them and their podcast, and the questions they ask and so on. In this case, it felt like it was a fellow. I don't think you are struggling. I mean, you are doing well, no, but no, I mean, but you know that the fact that you are saying a fellow entrepreneur, my day is done. Because by no means, but complete the thought, and then I'll. So I was saying that there is a certain affinity, a kinship that comes when a fellow entrepreneur says कि यार मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आ जाओ. तो फिर यू फॉरगेट कि आप कितने बड़े हो, कितने छोटे हो, कितने सक्सेसफुल हो. इट्स जस्ट अबाउट connecting and saying, look, he's asking genuinely, why be difficult? Or it's easy to say कि यार टाइम नहीं है, छोड़ दो, 1 घंटे नोएडा नहीं आऊँगा. It's okay for me to speak a little bit of Hindi. Yeah, absolutely. So anyway, so that is how I thought about it. I do say no to lots of podcasts. I don't directly say no, but I quietly kind of find a way to. So how at this stage and age, how you get to know genuineness from, because now, so एक क्वेश्चन मैंने संदीप से भी पूछा था, और कॉन्टेक्स्ट ये था कि ही इज अ इन्वेस्टर, राइट? एज अ फाउंडर वी ऑलवेज सीकिंग इन्वेस्टमेंट. सो एक बार एक वो आ जाता है कि अरे यार एक ये तरीका ना हो मिलने का, एंड दैट टाइम दैट थर्ड टाइम फाउंडर का कुछ हुआ था. आई कैन नेम, वो राहुल यादव का कुछ हुआ था. तो मैंने संजय से पूछा, सर आपने हज़ारों इन्वेस्टमेंट करी है, मोस्टली सक्सेसफुल है, बट देयर स्टिल पीपल हु कैन स्टिल ट्रिक यू. And he was like, we are human beings. So but when I'm coming on that, one commonality I've seen, is humbleness, and also the ability to see the genuineness of people or intent. So experience is it's training, leadership, how it's coming. And I'm not saying it's experience. Experience. Because you meet enough people who are not genuine. So if you are genuine, it stands out. It's actually very easy to spot. Not that you'll still not make an error. Yeah, of course. You can still make an error. But इतने लोग झांसा देते हैं ना, और इतने लोग
they are too full of themselves. Yeah, आपने वो word use किया smooth. I hope I'm not being smooth, but easy. You know. Easy, sorry. हाँ, no, I know. I'm joking. Yeah, but, please. But there are too many smooth people out there. तो एक almost relief सा लगता है कि यार कोई genuinely बोल रहा है, and equally छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे it took a while to get this date set. But your team was not that pushy. They understood कि हाँ भाई busy हो, you know, कर लेंगे. फिर मैंने एक शायद डेट चेंज भी किया बीच में, फिर कल करने वाले थे, आज किया. तो the fact that you were being flexible, your team was being flexible, they were being reasonable, कि they also understood कि यार I'm also taking a lot of time out. 1 घंटा आना, 2 घंटा करना, 1 घंटा जाना. So it's not a 1 hour commitment, it's a 4 hour commitment, and so on. So I think just that decency, politeness, grace, respect makes you feel like, okay, this person is decent, right? And genuine. Sorry, that was what we were saying. So now many of the audience got some playbook how to get best of people, you know. But you know, आपने हिंदी की बात करी, so it's very unscripted, real, you know, and candid discussion. The audience is as young as 14-year young guy who wants to navigate their way to best of the college in India or international. Their parents who are still questioning 70 लाख खर्च करे कि 15 लाख खर्च करे इंडिया में या 30 लाख खर्च करे. Then they are industry cohorts, you know, universities and all, and then like mostly, right? So this is the audience and it's English, you know. मुझे तो हिंदी भी नहीं आती और ना मुझे इंग्लिश आती है. You know, I'm come from Meerut, you know, though I have studied in the convent ICSC St. Mary's, but जब आप मेरठ से दिल्ली आते हो और आप कहते हो अच्छा, और मुझे आते याद है मैं मैकडोनल्ड्स को मैंने ऑर्डर किया था, दिस मच, हाउ मच, एंड मैं, मेरा भाई है बड़ा, वो अभी तो मैं मजाक उड़ा था कि तू तो चुप ही रहता था, इंग्लिश होना भी नहीं आता. आई एग्री, आई टोटली एग्री, राइट. बट हाउ वाज योर जर्नी सर, लाइक फ्रॉम पटना टू दिल्ली, यू नो, फ्रॉम व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड, इफ यू वांट टू ड्वेल इन. नहीं, मेरे फैमिली बैकग्राउंड ये है कि मेरे फादर एक हिंदी के साहित्यकार थे. तो हिज फर्स्ट एंड मोस्ट major preoccupation, profession was that he's a writer, an author. But I think in anticipation of some of the questions you might ask, he came from a well-to-do family, but they had lost all their wealth basically. पाकिस्तान से हाँ, वो इंडिपेंडेंस में कुछ ज़मींदारी वगैरह थी, वो ख़त्म हो गई. तो he was a self-made person, he was the youngest in the family. तो उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस लगाया था पटना में. तो उस समय वो एंटरप्रेन्योर थे जो हम लोग कभी समझते नहीं थे. एट होम वी हैड अ वेरी फैंसी पिक्चर ऑफ, वी यूज्ड टू थिंक कि हम लोग लिटरेरी फैमिली हैं, राइट. बट एंड जो भी एक्सटेंडेड फैमिली में लोग थे जिन्होंने बिजनेस में पैसे लगाए थे, वो सब कुछ गंवा दिया था उन्होंने. सो द जनरल थिंग आई ऑलवेज हर्ड कि भैया हम लोग बिजनेस वाले नहीं हैं, साहित्यकार हैं. हाँ. और आई कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर कास्ट, तो हमारे कास्ट में भी ज़्यादा लोग बिजनेस वगैरह नहीं करते. वी आर नॉट नोन टू बी बिजनेस गाइज और यू नो कमर्शियल टाइप. तो एक तरह से अपब्रिंगिंग के थ्रू इनग्रेन्ड था कि बिजनेस हम लोग के लिए नहीं है, जबकि बिजनेस में थे. एंड फादर हैड अ स्टार्टअप एंड अ बिजनेस, राइट, विथ व्हिच ही मेड मनी, educated us, built homes, gave us property, assets, you know, all that. But we never know, I was never conscious that this was it. But that was the upbringing. But उस समय ये एक और भी था upbringing में कि पटना was a very nice place, very safe place. तो एक तो ये हुआ कि I was in one school for more than 12 years, kindergarten. तो आई हैव फ्रेंड्स, एक्चुअली सेंट माइकल्स हाई स्कूल पटना था, लेकिन उसके पहले 3 साल एक नॉटरडेम अकेडमी था. तो सिस्टम ये था कि सेंट माइकल्स वाज बॉयज़ ओनली फ्रॉम 4th स्टैंडर्ड अपवर्ड्स. तो पहले 3 साल कोएड करके देन यू गो इनटू सेंट माइकल्स. तो एनीवे दोज 2 schools, बट मेनली सेंट माइकल्स हाई स्कूल पटना, विच वाज रन बाय जेजुइट्स एट दैट टाइम. तो व्हाट आई वाज गेटिंग टू इज कि 2 चीज़ें थी. एक तो वेरी क्लोज फैमिली, 3 sisters, parents, and extended family. So my mother and father had built a home which I still own in Patna. तो एक वो stability बहुत रही हमेशा कि एक घर था. और अभी भी वो when I think of home, I think of that home.
which I know is becoming rarer in today's day and age. So that is one big thing, which provided a certain sense of community connection and stability. Uh, of course, the extended family around that home. Second was the friendships, like I said. जैसे कल ही one of my classmates from school came to see me because his son just graduated from IIM Kolkata and has gone into BCG. तो उसको लेके आया था मिलाने. Now that's a very fond thing कि anytime you meet these people, and I have a very close group of alums in Delhi also. We have a WhatsApp group called दिल्ली के दिग्गज. तो हमारे स्कूल के जो लोग हैं उसमें हैं, we meet for dosas once every Saturday sometimes. So that friendship and connection is very strong. Some have gone into the services, some have gone abroad. People have generally done well and we are still connected. Recently we all turned 60, तो उसकी celebration सबकी हो रही है. The third aspect of course was that my father, because he had this business, and I don't know what was his instinct, where it came from. He would make me do lots of things. So part of my education was really learning about the practicalities of life. He used to give me lots of tasks to do. आजकल के बच्चों को ये exposure नहीं मिलता है, regardless of what background you come from. Parents से कि भैया तुम पढ़ाई करो, घर पे रहो, बाहर मत जाओ, सेफ नहीं है. बहुत प्रोटेक्टेड. हाँ, बहुत प्रोटेक्टेड था. तो मेरा भी बहुत प्रोटेक्टेड था. मैं ओनली सन था और बहुत छोटा था रिलेटिव टू एवरीवन. तो प्रोटेक्शन था कि यहाँ नहीं जाओगे, वहाँ नहीं जाओगे, लेकिन काम बहुत देते थे. सो आई रिमेंबर डूइंग लॉट्स ऑफ एरेंड्स. बैंक का काम, पोस्ट ऑफिस का काम, खरीदने का काम, बेचने का काम. इज इट बिकॉज आपके बाय चॉइस और बाय डिजाइन यू डिडंट हैव हाउस हेल्प्स? और नो, हेल्प भी बहुत तो भी योर डैड हैव गिवन एक्सपोजर. आई डोंट नो इफ इट वाज बाय डिजाइन या वो मजा लेते थे कि छोटे बच्चे को भेज रहे हैं. हमें अब जैसे आई हैव अ 5-year daughter, so I'm very fortunate to have my house right opposite. So I'm like, भावना 2-3 घंटे के लिए भेज दिया करो. हाँ, ठीक है. वो देख के मैंने like I have learned lots from my dad. I mean, I am not the smartest guy for sure, but I'm the hardest guy in the room. And वो हार्ड वर्क पापा को देख के ही आया है. बिल्कुल. अगर मैं खाली बैठता हूँ और क्योंकि पापा को काम करते देखा है, अब अगर मैं देखता हूँ ना खाली, मुझे लगता है यार कुछ कर नहीं रहा यार, नहीं यार टाइम वेस्ट हो रहा है यार, अब वो अच्छा है बुरा पता नहीं, बट इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. Yes, I know what you mean. I know what you mean. Yeah. So I think that is, I don't know whether it was how he was thinking about it, but it certainly left a big impression. So when you said about the journey, I think the Patna part was characterized by that. उसके बाद it became a little bit of a usual herd mentality. Engineering पढ़नी है, coaching कराओ, JEE दो. Thankfully IIT में हो गया तो कानपुर पढ़े, वहाँ से फिर बाहर चले जाओ. So that was the normal path. तो अब you studied outside India? हाँ, तो then I went to the University of Pennsylvania in Philadelphia. Which year was this? That was 1986. But it was very rare to go to UPenn in 1986 or even to go to US. हाँ, लेकिन IIT में बहुत कॉमन. like brain drain हो रहा था. हाँ, वो और IIT कानपुर has been set up by MIT. तो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग US से कनेक्शन. तो वहाँ जाते लोग एक भी होता था वहाँ जाके ड्रीम कर. हाँ, और वहाँ पे एक सीन था कि जो हमारी रूम्स थी ना, तो जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप्स मिलते थे उसको पेंसिल में डोर के बगल में लोग लिखते थे. तो हर when you shifted into those rooms in your final year, तो you would see कि इस रूम का जो बंदा था वो वहाँ गया. तो वो एक तरह से DNA में बिल्ड था कि बाहर जाना है और पढ़ने जाना है. लेकिन उस समय बाहर नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन पढ़ने जाना है उस जनरेशन में. तो एनीवे, सो बट माय पॉइंट इज कि ज़्यादा सोचा नहीं, मतलब जो सब लोग कर रहे थे वही किया. लेकिन आई थिंक US जाने के बाद आई थिंक एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग लगा. एंड देन went there to do a master's, ended up doing a PhD. और उसके बाद आई इंजीनियरिंग. हाँ, इंजीनियरिंग. तो वहाँ MS बोलते हैं, लेकिन M.Tech बेसिकली. और फिर PhD किया, और फिर
यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में कुछ दिन काम किया, लेकिन वो मज़ा नहीं आया फिर। तो देन फॉर्चुनेटली लक से मैकिन्जी एंड कंपनी में नौकरी मिल गई। तो देन आई वर्क देयर फॉर 13 ईयर्स। उनके साथ आई केम बैक टू इंडिया। तो एक हम सब के लिए बड़ी लकी रही कि इंडिया में उस समय लिबरलाइजेशन हो गया 91 में। तो मैं 93 से फिर इंडिया आने लगा। अदरवाइज विथ माय पीएचडी, और मैंने रोबोटिक्स की पढ़ाई की थी, विच वाज एआई इन दोज डेज। तो इट वाज उसका कोई फिट था ही नहीं कमिंग बैक, अदर देन टू बी अ टीचर इन आईआईटी और सम प्लेस। तो आई गॉट वेरी लकी कि मैकिन्जी में नौकरी भी मिल गई और इंडिया में लिबरलाइजेशन भी हो गया। तो उस समय आई केम बैक एंड देन आई स्टार्टेड कमिंग बैक फ्रीक्वेंटली, और फिर 1997 से मैं इंडिया में ही हूँ। You define yourself as a entrepreneur more or educator more? सच कहो तो आई डिफाइन माई सेल्फ एज अ डूअर। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, बट इतना सक्सेसफुल भी नहीं हूँ मेरे हिसाब से। लेकिन जो आप कह रहे थे ना कि कुछ करते रहने का, तो आई फील दैट आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू पिक अप प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम नॉट ऑन पेपर बट एक्चुअली ऑन द ग्राउंड। तो मुझे उसमें मज़ा आता है कि मुझे कहो कि यार एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर दो, मुझे कहो कि मेरी पासपोर्ट करवा दो, मुझे वीज़ा दिलवा दो, मतलब ऑल दीज थिंग जो आप कर रहे हो कि मुझे हाउसिंग दिलवा दो, आई वुड लव योर बिजनेस, यू नो। सो देन तो मुझे एडवाइजरी बोर्ड में कोई मिल गया। मुझे एडवाइस देने का कुछ है नहीं, बट यू नो इफ यू एक्चुअली आस्क माय ओन कैरेक्टराइजेशन ऑफ माई सेल्फ, तो आई थिंक एंटरप्रेन्योर इज टू स्ट्रॉन्ग अ वर्ड फॉर मी। मैं देखता क्या हूँ, फर्क है डूअर और एंटरप्रेन्योर में अपार्ट फ्रॉम? नहीं, आई थिंक मैं इतना बड़ा रिस्क टेकर नहीं हूँ। मैंने कैलकुलेटेड रिस्क बहुत लिए हैं, लेकिन मैं और लोगों को देखता हूँ जिस तरह के वो बेट योर लाइफ और बेट योर कंपनी या नौकरी छोड़ के मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ। आई गेस मैंने किया है वो भी, मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में, लेकिन इन अ वे आई वाज फोर्स्ड टू डू इट, क्योंकि मैं एबीपी में जब था तो नौकरी चली गई या आई रिजाइंड। फिर मुझे लगा कि आई एम नॉट समबडी हु कैन वर्क फॉर समबडी, तो मुझे खुद के लिए ही काम करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई आई गॉट इनटू इट। इट वाज नॉट कि अरे आई हैव दिस बिग आइडिया एंड So you say you've been working hard, you are a doer and you are going the flow, right? And flow में आप जहाँ पे भी होते हो अपना पूरा देते हो और चीज़ें हो जाती है जी। पर आपने बहुत सिंपल बोला लक लक लक, पर मुझे लगता है हम लक को बहुत ज़्यादा मतलब श्रेय देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आई नो व्हाट यू आर सेइंग, एंड वो मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं भी मानता हूं कि सब कुछ लक से नहीं होता। मेरे साथ यह है कि मैं बहुत कुछ ट्राई मारता रहता हूँ और बहुत कुछ फेल भी होता है, तो बैड लक भी बहुत होता है और हुआ है, बहुत हुआ है। जैसे अब फैक्ट कि इतने साल पढ़ाई करके पीएचडी करके और एकेडमिक नहीं बन सका, वो बैड लक कह सकते हो आप, या कह सकते हो कि भाई आई वाज नॉट कट आउट। एबीपी गया, सीईओ बना, सोचा कि मैं इतनी बड़ी कंपनी बनाऊंगा, इंडिया का लीडिंग आनंद बाजार पत्रिका में जो कलकत्ता में है, देव आई आफ्टर मैकिन्जी 13 साल काम करने के बाद आई वेंट देयर एज एमडी एंड सीईओ। 1.5 साल में आई रिजाइन। तो इन अ वे डिडंट वर्क आउट। अगर आप मेरी कंपनी देखें 9.9 शुरू तो किया था बहुत, विकास गुप्ता। तो हम लोग 4 पार्टनर्स, 5 लोग थे, 4 पार्टनर्स मेरे। हमने बड़े लाइक ऑल एंटरप्रेन्योर्स वी स्टार्टेड विथ अ बिग एस्पिरेशंस, लेकिन वो अभी भी है, लेकिन वो सक्सेसफुल उस तरह का नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आई एम अगेन नॉट सेइंग इट कि ज़बरदस्ती हम्बल होने के लिए, लेकिन द फैक्ट इज़ कि कई चीज़ें हैं जो वर्कआउट नहीं की। बीच में मैंने एक बार बिजनेस स्कूल बनाने की कोशिश की बड़ौदा में एक फ्रेंड के साथ, वो बिल्कुल फेल हो गई। मैंने 9.9 स्कूल ऑफ कन्वर्जेंस खोला था जो जर्नलिज्म की पढ़ाई के लिए, वो बिल्कुल फेल हो गई। तो देयर हैव बीन इनफ बैड लक ऑल्सो, बट येस यू आर राइट। आई मीन इट इज़ नॉट जस्ट लक, इट इज़ जस्ट दैट यू डोंट let these bad lucks or incidents bog you down. Right. You keep trying. Right. You don't give up, and you also don't get pessimistic after these. Right. You say कि ठीक है, फेल हो गया, कुछ और कर लेंगे। Is it your support? Is it आप एक फैमिली से आते हो, जो एक I can say the privileged family. जी बिल्कुल, राइट। जिसकी वजह से आप
ठीक, you worked hard, you got into IIT, right? आप IIT कानपुर में गए तो आपको वहाँ जाके एक तो you got a brand plus you got an environment wherein you need to put your best because otherwise you will not survive in IIT कानपुर. And वहाँ पे you got an aspiration wherein US is a natural progression. And when you go to US, you and that too good universities, you again have an edge, you know, and then you get into an environment wherein वहाँ पे फेल भी हो गए तो वो वहाँ का फेलियर कंपेयर टू इंडिया में कहीं भी स्कूल पढ़ के या कहीं पढ़ के, यू नो, यू आर स्टिल सक्सेसफुल इन दैट लेंसेज. बट अभी तक जो आपने बताया ऐसे लग रहा है कि यू जस्ट फ्लू लाइक अ वाटर, you know. But I'm sure, you know, and if I parallelly see it, IIT Kanpur, MS, PhD, that too robotics. Why did you come back? Or started coming back नहीं, मुझे इंडिया से बहुत लगाव रहा हमेशा. I was because of very- आपका पटना हाँ, अब स्कूल लगता है. फ्रेंड्स. उस समय एनालाइज नहीं कर पाया था कि क्यों है, बट कई रीजंस थी. मैं ओनली सन हूँ, मेरे चिल्ड्रन नहीं हैं, पेरेंट्स ओल्ड हो रहे थे बिकॉज दे हैड मी वेरी लेट. तो आई वांटेड टू बी देयर फॉर देम. प्लस इंडिया में अपॉर्चुनिटीज गजब अपॉर्चुनिटीज होने लगी थी. तो उस टाइम पे भी क्योंकि 91 हाँ, से 2010 तक एक्साइटमेंट शुरू हो गया. 2003 से तो होना शुरू हो बाय गया द वे, जब 91 की रिफॉर्म्स हुई तो शुरू में बहुत एक्साइटमेंट था. वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट रिजीम कुछ पॉलिटिक्स की वजह से फिर वो थोड़ा सा टेपर हो गया. लेकिन वो पहले 3-4 साल में बहुत कुछ हुआ इस देश में. आज के यूथ को मालूम नहीं है, लेकिन इट वाज क्वाइट रिमार्केबल. राइट. तो वो एक था. बट या आई थिंक यू नो द स्मेल, द फूड, द म्यूजिक, द कल्चर, वो बहुत डीपली इनग्रेन्ड था. लेकिन उस समय ये सब रियलाइज नहीं होता है उस एज में कि व्हाट इज ड्रॉइंग यू बैक. यू नो, अब यू कैन गो बैक. Is it your, let me try, I'm sorry I interrupted you here. No, that's okay. I can relate to a bit, you know, here. So I'm from Meerut. जी I come from a all boys school, जी. right? Although all boys school की दोस्ती होती है, but you know, हाँ. so I'm happiest when I'm playing cricket, हाँ, and I'm happiest when I'm playing cricket with my school friends. school friends, those guys. Right? Which probably, you know, I can relate to this aspect. आज भी, you know, I work hard, but Friday Saturday मुझे लगता है मेरठ जा रहा है, तू आ रहा है, you know, चल खाएंगे पिएंगे खेलेंगे, right? You are, what is your date of birth? 12th June. Okay, I thought you were Leo because you have lots of Leo traits. I'm a Leo, and I'm not that I am into zodiac and superstition, but I believe there are some traits, right? But this part I can relate, you know. And on this, you know, you mentioned co-ed. You have studied in a co-ed school, and then you were in all boys. What? Because there's a audience segment which probably, and this also I'm also an audience to this. I'm an all boys school, you know. Now my daughter goes to a co-ed, right? I believe there's advantage to both the school of thinking. But what is your view as an educator? As an educator, I think boys should go to a co-ed school, girls should go to an all-girls school. Okay. ऐसा क्यों? It's a bit of a strange view, but I do think that as boys in an all-boys school, we were always very awkward with women. Yeah. After that, and a lot of attitudes of the society kind of remained with us. Right. Because I was very lucky again that I had 3 sisters who all did very well. So I could see that women were truly equal, and you know, but I do think that in the boys and only boys network, that often, even if you are not predisposed, you start thinking that way. That's one thing. So I think if boys were part of co-ed, it's good because you at least get comfortable with women friends, interacting with them and all that. I remember going to IIT and being very awkward. Even in the 4 years of IIT, I could not really talk to women very well. On the other hand, I feel that girls in our society are still held back a lot. And in a co-ed environment, the boys tend to dominate.
आज भी मैं देखता हूँ कि अगर आप किसी ऑडियंस में जाओ और टॉक दो और बोलो कि अच्छा अब आप क्वेश्चंस पूछो, तो सारे क्वेश्चंस इट विल स्टार्ट विद अ बॉय or a man. Good observation. And you know that the women also have questions, but they will hold back, they will ask later or not ask Not at all ask. because Or the they ask guys are 101. dominating, Right. you know. Right. अभी recently मैं एक यूनिवर्सिटी में गया था, तो I had to say कि भाई can you guys let one of the women ask a question? So I do think that where I'm going with that is that if you actually create an all girls environment, and I've done that with the Vedika Scholars program for women, that women can truly then experience their full potential. Then they are not holding back at all. They are not feeling like people are judging them or वो लड़के dominate नहीं कर, चांस ही नहीं किसी को dominate करने का, तो it's only women. But don't you think it's like it's not inclusive way of education? I come from all boys, same experience, wherein when I went to DU, for the longest time, like, and I was still fortunate, I was lucky, I would say, or entrepreneur in that sense, wherein हमने तो 8 9 में ही हमने फ्रेंड्स बनाना शुरू कर दिए थे. There was like the movie this जो जीता सिकंदर ना, all boys and all girls. So there was Semir, there was Sophia, So I still got an exposure towards having friends and study together and partying together. But still, for the longest time, and that's such a disadvantage because you treat differently, and it also impact your sales qualities or anything, because office में जाके आप natural नहीं रहते, and then that also impact your opportunities. And again, I was lucky, बहुत lucky बात हो रही है, but I got my first boss was a female boss who actually pushed me to start a sales. And I was shy and timid. मैं तो तुतलाता था. I used to stammer. तो sales तो मतलब ही नहीं है. मैं तो क्लास में होता था कि इस बारी क्लास में मेरे को पढ़ने को आ जाएगा तो मैं सीट चेंज कर लेता था. Right? So, but still, why I'm asking you this, because you started Vedika, which is an all girls, institute or organization. But don't you think it should be why we should have separate all boys, all girls? Even if this society been started with, I know people say in men's word. I don't believe so. It's a woman. People say it's a men's word. I believe it's a woman word, and it is a woman word, and it should be a woman word because they are more empowered, they are more stronger, right? But मेरे क्वेश्चन है, और मैं हो सकता है थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट क्वेश्चन हो ये, मैटरनल लीव होती है, पैटर्नल लीव होती है, फादर लीव तो नहीं होती. अब होने लगी है बहुत कम ना, मतलब राइट, बहुत कम होती भी है. तो मतलब मैं ही देखता हूँ यार, हो तो गया एक हफ्ता, तू आ जाना यार. राइट. देन so where I'm coming is still, when we say it's an equal word and women and men are equal, but in reality they are not, structure wise also and overall societal way of treating people, so then why should we have all women or all boys? It should be not at all only. So I don't, sorry for my unstructured question, but you got my sense. I think I understand what you're saying. Look, I fundamentally believe that you are talking about a difference, a biological difference, and while that difference is there and it will always be there, at least I am also a big believer that from an opportunity perspective or from an ability to get something done, there is no difference. And there should, in fact hai, women are more stronger. They are more intuitive. That I'm not getting into, but I'm saying कि देखो, they are at least equal, as good, and they deserve exactly the same opportunities. Right. Okay, and that is not in reality true. That's all I'm saying. Right. So therefore, the two suggestions I made may seem contradictory. Right. Because if you look at the solution set, on one hand I'm saying make all girls, then I'm saying make co-ed. So, but I'm saying that those are both problems to solve. Obviously, you are not going to be able to do only all girls, only co-ed. But since you asked, I said कि देखो, अभी जैसे मैं कलकत्ता में था, तो there's a group there that wants to start a new university. तो उन्होंने कहा कि आप कुछ नया बताइए. I said नहीं, आप all women's university शुरू करें. They were shocked. They were like, आप ये क्यों बोल रहे हो? But I given the same logic.
So I don't think all universities in India will become all women, but I think if we can make some like that, look, even today LSR and Miranda do so well because they're all girls. Vanasthali is there. Huh? Vanasthali, Vanasthali hai yeah. Jaipur mein. So I think I was only saying it from the context of not as a general solution, but these are all ideas that can be relevant to some of the societal problems that we have today. No, very appreciate. Absolutely, understand. But now coming back to so entrepreneur or educator, doer हो आप ठीक है, but still एक होता है ना, या तो बैट्समैन हो या बॉलर हो. I think I'm more entrepreneur. You're entrepreneur. More entrepreneur. कहाँ से आया entrepreneurship? Because you come, I know. कहाँ से आई entrepreneurship? ये कहाँ से पिक किया आपने कि मतलब आप कह रहे हो आपने रिस्क नहीं लिया, but नहीं वो you have started ISB founding Ashoka और लोगों के Harappa. साथ किया ना तो हाँ. So anyway, I think I know what you're asking, and मैं यही कह रहा हूँ कि ये आया यहाँ से, आया not from a risk taking ability, but आया from the confidence कि मैं कर सकता हूँ, कुछ भी आप दे दो मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा. Maybe sometimes over confidence or misplaced confidence, but वो शुरू वहाँ से हुआ. वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? IIT कानपुर से आया कि आई थिंक यूपेन से आया? नो, मेरे ख्याल से वो कॉन्फिडेंस जो आप कह रहे थे कि दैट प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, आई थिंक वो प्रिविलेज जो Cushion. मेरा था वो क्वेश्चन ऑफ फैमिली एंड बॉन्ड्स था. पैसे का प्रिविलेज नहीं था. मतलब आई वाज वेरी कंफर्टेबल, तो इन दैट सेंस आई वाज प्रिविलेज्ड कि आई लिव्ड इन अ, मेरे घर है, खाने पीने कपड़े पढ़ाई के लिए पैसे की कभी कमी नहीं हुई. तो पैसे के प्रिविलेज था, बट वो ये भी नहीं था कि इतने सारे पैसे थे कि एंटरप्रेन्योर बन जाओ, या अगर लॉस करोगे तो घर से मिलेगा, घर से कुछ नहीं मिल सकता था, पैसे नहीं थे. बेसिक करा दिया एंड अच्छा करा दिया. लेकिन जो ये एंटरप्रेन्योर वाला फेज था उसमें घर से कभी पैसे के सवाल ही नहीं था, किसी फैमिली से भी नहीं था. तो इन दैट सेंस आई थिंक द कॉन्फिडेंस केम फ्रॉम द फैक्ट कि चलो हम देख लेंगे, कर लेंगे, कुछ होगा तो आगे निकल जाएंगे. तो दैट कॉन्फिडेंस, हाँ, एंड यू आर राइट, पार्ट ऑफ दैट कॉन्फिडेंस ऑल्सो केम लेटर फ्रॉम द एजुकेशन. यस, दैट्स अ वेरी पावरफुल थिंग कि भाई कहीं ना कहीं नौकरी तो मिल जाएगी, कोई एम्प्लॉय कर लेगा, किसी को समझा बुझा के एक काम ले लेंगे जिसके लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे. वो आज भी लगता है. तो मेरे एक डबल क्वेश्चन इसमें, एज अ 17, 16, 18 ईयर गर्ल गाय हुएवर, एक स्कूल ऑफ थॉट है कि यार अच्छी एजुकेशन कर लो, जो मोस्टली इंडियन स्कूल ऑफ थॉट है कि यार 24-25 हज़ार अच्छे से पढ़ ले, अंडर ग्रेड कर ले, पोस्ट ग्रेड कर ले, उसके बाद जॉब तो करनी है, जो भी करना है. एंड देन देयर आल्सो आर कोहर्ट्स, आर पीयर ग्रुप्स इन US और इन UK who are like 16 साल के हुए और your own, go on the street, learn on your own. We have done this much. Now you become you, and that's when lots of people don't able to pursue the education to start with, and then they become street smart. Some become outliers, and most of them then they have to come back to education, or they probably don't have formal education, and due to which they're in that one range. समझ गए, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते because basically they don't have the formal education or enough education to be a leveler. मेरा मानना है कि अगर आप इंडिया में हो तो कॉलेज एजुकेशन ज़रूरी है. अच्छा. बट इसलिए कि नहीं कि इट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द जॉब पर्सपेक्टिव. मेरे हिसाब से मोस्ट प्लेसेस स्कूल एजुकेशन जो हमारे यहाँ है और जो क्वालिटी है इन जनरल, वो पूरी तरह आपको डेवलप नहीं कर पाती. तो कुछ रह जाता है, कुछ बचा रह जाता है टू कंप्लीट द फुल डेवलपमेंट ऑफ योर फैकल्टी. ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा रोट लर्निंग हो गया है, बहुत ज़्यादा रट्टा मारना और जस्ट एग्ज़ाम के लिए पढ़ के निकल जाना, पास हो जाना. तो इफ़ यू रियली वांट टू जेन्युइनली चैलेंज योरसेल्फ, एंड वही प्रिविलेज और एक्सेस की बात हो जाती है. अगर आपको नहीं अच्छी स्कूल एजुकेशन मिली तो आगे निकलना ही पड़ेगा आपको, थोड़ा सा अपने को और विकसित करने के लिए, समझने के लिए कि वर्ल्ड कैसे काम करता है. नाउ प्रॉब्लम है कि उसमें भी आप यू नीड अ गुड कॉलेज एजुकेशन. राइट. अगर नाम के वास्ते करोगे तो फिर वो भी
फिर तो आपको नहीं मिलेगा. Right. So we are not talking about a situation where you are getting a bad education all 16 years, but I'm saying that you have to constantly keep working on accessing better and better quality education if you want to be successful, and that ends up you requiring more rather than less. I'm not suggesting कि आप कॉलेज में enrolled रहो just to accumulate degrees and accumulate years. आप जो यूके, यूएस, यूरोप अगर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे स्कूल के बाद ही एक स्टेज आ जाता है जबकि और कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. मे बी यू डिडंट नीड अ कॉलेज एजुकेशन. आई वुड से दैट व्हेन यू केम आउट ऑफ योर सेंट मेरीज, आप बताएं, यू केम आउट ऑफ सेंट मेरीज, यू डिडंट नीड. सच पूछो तो आईआईटी का छाप मुझे मिला, लेकिन मैं 4 साल मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग पढ़ा और बहुत कुछ टेक्निकली चीज़ें की, लेकिन अगर मुझे नौकरी चाहिए होती थी, नौकरी जो मुझे मिली थी हैड नथिंग टू डू विद दैट. मेरा एक कोर्स था आईआईटी में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का उस समय, एंड आई गॉट अ जॉब विद टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, एक कोर्स करके. तो यू कैन इमेजिन कि अगर मैं 12 साल के स्कूल के बाद मुझे थोड़ा सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स मिलता था तो वही नौकरी मिल जाती मुझे. राइट. एबिलिटी वाइज तो वो था ही. राइट. मैं कल सेम आई वाज इन अमृतसर. आई वाज माय वाइफ लाइक इन लॉज के यहाँ था. सो आई हैव आई कुड से नेफ्यू और कजन हु केम टू मी कि सबको लगता है मैं एजुकेशन में तो मुझे सब आता है. लाइक एंड ही केम टू बी लाइक सौरभ भैया मैं अब क्या करूँ. मैंने आप कितने साल को. ही इज़ 18 एंड हिज फादर रन्स अ प्रिंटिंग लाइक इनटू पेपर मिल, राइट, लाइक इनटू पेपर ट्रेडिंग. एंड आई एम लाइक कितने मार्क्स आए. कल 64. मैं तेरे पढ़ाई में कहता हाँ कल मतलब मन नहीं है, मतलब हाँ ठीक है. मतलब पढ़ना क्यों है. यू हैव अ डैड हु इज इनटू बिजनेस एंड तेरा इंटरेस्ट है, राइट. उनके साथ लग, डूअर बन, हाथ गंदे कर. बट जहाँ के तो लगता है कि यार फाइनेंसिंग 3 महीने का 3-6 महीने फाइनेंसिंग कोर्स कर ले, अकाउंटिंग कोर्स कर ले. नो, आई थिंक यू गिव हिम द राइट एडवाइस. राइट, आई एग्री विद दैट. अब इसका ही लेकिन सबके पास वो प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती है, राइट. एंड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीपल सी दिस इज अ वेरी unique and subjective discussion. Yes, people go to counselors and all कि वो भी यूएस जा रहा है तो मैं भी यूएस चला जाता हूँ. वो हर्ड मेंटालिटी है. इसीलिए मैंने भी बोला कि इफ यू लुक एट माय जर्नी आल्सो, आई वाज प्रिविलेज्ड एंड आई गॉट गुड थिंग्स, बट उस समय मैं सोचता नहीं था मतलब बाकी लोग कर रहे हैं मैं भी कर लूँ, वो कर लूँ, आईटी कर लो, ऊपर आगे चले जाओ, मेटलर्जी पढ़ लो, यूएस पढ़ लो. तो बट आपने आईटी क्यों किया, या किसने पूछ किया आप, या हो गया, हुआ तो नहीं होगा, नहीं, मैं बता रहा हूँ, एस्पिरेशन आया होगा. नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं जब स्कूल में था तो मैं जनरली सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि आई वाज अ टॉपिंग एवरीथिंग. राइट. हाँ, बट आई वाज अ गुड स्टूडेंट. मैं हम्बल अननेसेसरली नहीं बन रहा हूँ. आई वाज ऑन द टॉप 2-3-4 पीपल इन द क्लास. स्टूडेंट वाले मार्क्स आते थे, समझ भी आता था. नहीं, समझ भी आता. आई थिंक समझ भी था, मार्क्स भी आते थे जहाँ तक मुझे याद है. लेकिन स्ट्रगल भी करता था क्योंकि सब टीचर्स अच्छे नहीं थे सारे सब्जेक्ट्स के, तो उसमें काफी स्ट्रगल करना पड़ता था. और अब मुझे लगता है कि अगर अच्छे टीचर्स मिल जाते उस समय, टोटली, तो मेरी सोच और समझ और भी अच्छी होती. टोटली, तो अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि एक्चुअली आई वाज मच बेटर इन द ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, क्योंकि मैं लिखता अच्छा था. वो फैमिली से आई थी शायद, अंग्रेजी भी अच्छी थी. तो अगर सच पूछो तो आई वाज नॉट एन इंजीनियरिंग टाइप स्टूडेंट. लेकिन हुआ क्या कि उस समय अगर मार्क्स अच्छे हैं तो आप मेडिकल में जाओ या कंप्यूटर इंजीनियरिंग करो. अब उस समय भी मैं कंफ्यूज था. मुझे मालूम नहीं कि मुझे, आज भी मैं बोलता हूँ कि 17-18 साल की उम्र में किसको मालूम है क्या करना है, और कौन काउंसलर बता सकता है रियली कि आप क्या हो. या आजकल तो लोग टेस्ट देके कहते हैं मैं आपको बता दूंगा आप क्या. ये बकवास है मेरे हिसाब से. लोग 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं. लोग 5 लाख रुपए ले रहे हैं. बिल्कुल साइकोमेट्रिक्स और ऑल. बिल्कुल साइकोमेट्रिक टेस्ट करके आप कैसे बता सकते हो. अरे आपको मालूम ही नहीं कि कल क्या प्रोफेशन होगा. आप मेरी साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते 18 साल की उम्र में और बताते कि मैं रोबोटिक्स में पीएचडी करूंगा, रोबोटिक्स का आर नहीं मालूम होगा लोगों को. या आप बताते किसी को कि मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाऊंगा. तो एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, तो उस समय भी कंफ्यूज था. तो लोगों ने कहा नहीं, लेकिन तो ऐसे ठीक है दोनों ही कर लेते हैं. तो मैं तो डिसाइड ही नहीं कर पाता था, एंड आई वाज अ क्लासिक केस ऑफ इनडिसीजन. तो +2 में मैंने बायोलॉजी भी ले लिया, मैथ भी ले लिया. और जब मैंने 12वीं के रिजल्ट्स आए तो उसमें बायोलॉजी के सब्जेक्ट में मैं टॉप कर गया. लेकिन जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट थे उसमें कहीं नहीं हुआ, लेकिन वो इंजीनियरिंग टेस्ट में रैंक आ गया.
तो वो सब मेरे हिसाब से बस सब कुछ ट्राई कर रहा था मैं। तो आपने शॉर्ट्स ले रहे थे, कहीं ना मैं लग गया। शॉर्ट्स ले रहा था Right. और इसमें अच्छा रैंक आ गया। और फिर था जब रैंक आ जाता था तो मैंने इसके बारे में अपने बुक में भी लिखी है कि देन यू एम फॉर द, तो एक उसमें- एक बार खून चक गया तो हाँ, फिर नहीं, और चांस अगर मिल गया हाँ, देन मैं छोड़ता नहीं। हाँ, दैट वाज आल्सो ट्रू कि आई एम ऑलवेज वेरी कॉन्शियस कि ऊपर जाना है और ऊपर जाना है। तो जब देखा कि रैंक आ गया और उस समय आईआईटी कानपुर बेस्ट आईआईटी था, देन आई This सेड is कि in मुझे 19 कानपुर ही जाना है। 1980s 82 की बात है। 82 मेरे ब्रदर इन लॉ वहाँ गए थे, वहाँ से वो फिर बर्कले पढ़ने गए, फिर वहाँ पे सिलिकॉन वैली में थे कई और कजन्स वगैरह। तो हम लोग बिहार से ऑप्शन था खड़गपुर जाने का या कानपुर जाने का। लोग दिल्ली, खड़गपुर बम्बई, लेते। चेन्नई कम जाते थे और हम लोग एक्चुअली भले ही वहाँ पे प्रिविलेज थे लेकिन एक्चुअली स्मॉल टाउन मेंटालिटी थी कि नहीं यार दिल्ली बहुत बड़ी जगह है, बेटा बर्बाद हो जाएगा बम्बई चेन्नई जाके, नहीं। तो कानपुर जाएंगे और कानपुर का रेपुटेशन भी था। लेकिन उस समय ये नहीं सोचा कि मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूँ, कानपुर जाना। अब कानपुर में उन्होंने कहा कि साहब आप मेटलर्जी पढ़ लो। मैंने कहा मुझे एरोनॉटिकल मिल रहा था। पहले मैंने बोला मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, तो बोले कि नहीं आपकी रैंक अच्छी नहीं है। तो दे कुड हैव परसुएडेड मी, दे सेड कि नहीं अगर आप बीएचयू चले जाओगे, उस समय बीएचयू आईआईटी बन गया था, आप वहाँ कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हो। मैं नहीं, मुझे तो यही पढ़ना है बिकॉज मेरे दिमाग में था कि इंस्टीट्यूशन। कानपुर। हाँ, अभी क्या आपका व्यू है कि इंस्टीट्यूशन कोर्स की, और ये मैं क्वेश्चन आई थिंक पूछता हूँ, इंस्टीट्यूशन इज Number one? पैरामाउंट टू मी। Not the course? कोर्स यार कुछ भी कोर्स कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है। हम लोग कितने उस डिसिप्लिन में काम करते हैं जो हमने पढ़ा था। टोटली। तो अच्छी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपको होलिस्टिक एजुकेशन मिले, जहाँ पीयर ग्रुप अच्छी हो। अगर आप ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ के और भी बच्चे आपके ऊंचे या आपके स्तर के हो, तो इट इज बेटर टू गो देयर देन टू रन आफ्टर द कोर्स। पर ये भी बोलते ना कि लर्न व्हाट यू लव एंड बिकॉज देन यू विल डू। आई नो बट आई थिंक द फैक्ट इज कि मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि हायर एजुकेशन में पर्टिकुलरली योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, उसकी सिग्नलिंग वैल्यू बहुत होती है। वो जिंदगी भर आपके साथ रहती है। कोई मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरे ग्रेड क्या थे आईआईटी में। मेरे ग्रेड्स बड़े अच्छे नहीं थे। किसी को मालूम भी नहीं कि मैंने मेटलर्जी पढ़ी थी वहाँ पे, लेकिन सबको मालूम है कि आईआईटी कानपुर। तो ये एक बड़ा, यू मे नॉट अग्री बट ये सोसाइटी का ये, हाँ नहीं, सिग्नल वैल्यू है। हाँ, तो उसके बाद यू शुड पिक। एंड देन आई स्टडीड दिस कि वो काउंसलिंग में उन्होंने कहा कि ये कर लो वो कर लो, तो चूज कर लिया कुछ। तो आई थिंक टिल दैट पॉइंट इन टाइम इट वाज ऑलवेज कि कोर्स जहाँ वो जो तुम बात कर रहे हो आपकी flow with the water. बट वंस यू फ्लो Then you go deep. try to do better, right? You go deep in that water, yes and Yes. pick the up all. yes अब जैसे वहाँ भी मैंने इसके बारे में बात की है, पहले सेमेस्टर में मुझे जॉन्डिस हो गया तो मेरे ग्रेड्स बहुत खराब हो गए, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की कि अंत में एक बीटेक प्रोजेक्ट किया, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग सीख ली, उसमें बहुत मजा आता। तो डू व्हाट यू लव वहाँ आ गया। तो उसी में ढूंढो कि व्हाट डू यू लव। Because see, मैं सैटरडे के साथ बैठा हुआ था and Piyush, he is heading IDP, one of the largest education consultant in globally, I would say, or second largest. And he shared very strong point that his son was very clear कि मुझे कंप्यूटर साइंस ही करना है या मुझे AI में कुछ करना है, like, and he went so deep that he picked a course by faculty, by curriculum, and then he decided कि मुझे पर्टिकुलर कंट्री जाना है कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जाना है। and there's that example and there's your example. I believe, I might not be wrong, I believe अच्छा कोर्स, अच्छे इंस्टीट्यूट और अच्छा पीयर ग्रुप मिल जाए तो डेडली कॉम्बिनेशन है। ऑफ कोर्स तीनों, राइट। एंड इफ वी नीड टू पिक, एंड इफ अगर आपको अपनी थोड़ी लाइफ इजी करनी है पहले 10 साल में, तो अंडरग्रेड में अच्छी ब्रांड पकड़ो, लाइक अच्छा कॉलेज पकड़ो, एंड देन कोर्स कैन बी सेकेंड। बिकॉज आई एम अ गाय, आई एम नॉट IIT-IIMs, राइट, एंड ग्लैड आई वॉजंट, एंड प्रॉब्लम मुझे पता भी नहीं था, राइट, और मैं उस समय आई लिव टू ईट, राइट, and I just happened to got into entrepreneurship, and
जब से बनाने लगे देन आई रियलाइज कि यार होता तो जो मुझे 12 साल लगे हो सकता है 3-4 साल लगते हैं या 5 साल लगते हैं, बिकॉज एक क्लब बन जाता है, एक नहीं, उससे एलुमनाई एक है। फिर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है ना। हाँ, हाँ, हाँ। कॉन्फिडेंस आ जाती है Cushion आ जाता कि है, यार कुछ भी कर सकते हैं, अगर ये कर लिया तो निकल जाएगा। Right. No, I agree. So you mentioned that you somewhere mentioned, learn, you don't study. Focus on learning, then study, and being an educator. Why did you say this? Focus more on learning and just not study. Many reasons, because see, like I was saying, even in my time, there is this tendency to say that, okay, this is what you want to do. That assumes that you know what you want to do. It also assumes that what you do is going to be there by the time you get there. But anyway, people still pick this thing that you want to do, and then everybody tries to work backwards from that. कि अच्छा वहां जाना है तो ये करोगे तो वहां पहुंच जाओगे। Right. अब Reverse ये engineering. पाथ भी क्लियर नहीं है, किसने बोला कि ये कर लोगे तो वो मिल जाएगा। Right. और Right. वहां पहुंचने के लिए बहुत सारे पाथ हैं। Right. मैं नहीं कह रहा कि यहाँ से करके वहां आप नहीं जा सकते, जा सकते हैं, Hmm. लेकिन बहुत सारे पाथ्स हैं जाने के लिए। Hmm. तो जब हम ये फिक्सेटेड हो जाते हैं कि मुझे यही करना है, यही पढ़ना है, तो यू डोंट एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल पाथ्स, एंड समटाइम यू टेक सब ऑप्टिमल डिसीजंस। Right. एंड एक्चुअली उस पाथ पे इतने फोकस हो जाते हो कि ये जो ईयर्स होती हैं, जब आपका ब्रेन एक्सपैंड कर रहा है, जब आपके ब्रेन में कम्युनिकेशन स्किल्स, योर पर्सपेक्टिव ऑन डिफरेंट थिंग्स, योर एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली, ये सब जब बन रहा है, तो आप इतने फोकस्ड हो जाते हो Hmm. कि आपके बाकी फैकल्टीज डेवलप नहीं होती You don't enjoy the journey. You focus on You destination. focus totally on the destination. That is a different, another very powerful way of saying it. Hmm. And I think that today learning has become very important, because studying to achieve a certain job or a rank or a percentage actually doesn't have any Significant. relationship to Yeah. what you will be, how successful you will be. Right. Agree. तो it is better to start to at किसी स्टेज में जहाँ भी, अब कई बार लोगों के पास ऑप्शन नहीं होते हैं। आप कह रहे हो कि भाई मुझे खाने की पड़ी थी, तो मुझे पता ही था आइडिया, हाँ, और पता भी था। तो आई कम फ्रॉम बैकग्राउंड जहाँ पे था कि हम तुझे अच्छा पढ़ा दिया, एंड वो बून भी था कि अपने आप करो, और बेन भी था, किसी ने बताया ही नहीं। और इस समय लगता ही नहीं, IITM तो अलग लोग होते हैं, उनके अलग सिंग होते हैं, वो अलग करते हैं, हम नहीं कर सकते। हाँ, राइट। एंड दूसरी बात यह है कि आई ऑल्सो वांट पीपल टू अंडरस्टैंड दैट स्टडी स्टॉप्स, लर्निंग डजंट। लर्निंग एंड शुड नॉट, एब्सोल्युटली। आप क्या कर रहे हो अभी? राइट। आप शुरू में मुझसे यही कह रहे थे ना कि योर मोटिवेशन फॉर डूइंग दिस इज एक्चुअली अ वे फॉर यू टू पर्सनली लर्न, या एब्सोल्युटली, राइट, फ्रॉम एज मेनी पीपल अराउंड यू दैट यू कैन लर्न। राइट। सो इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। और कल को मैं भी जाके हर प्लेन राइड के पहले 2-3 पॉडकास्ट डाउनलोड करके सुनता हूँ, क्योंकि अभी भी मैं लर्न कर रहा हूँ। तो आई थिंक इट हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ दिस सेंचुरी एंड द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स, कि अगर आप सीखते नहीं रहोगे, अब आप ही की जो बिजनेस है, किसने बनाया, मतलब दिस इज सच अ यूनिक बिजनेस, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यू ओनली saw that opportunity by exposing yourself. No education would have prepared you for a university living business. मतलब इसमें कौन सी डिग्री है, कौन सी डिग्री है जो आपको पढ़ाएगी ये चीज? बिल्कुल। So I think by having that curiosity and learning orientation, तभी तो लोग नई businesses create करते हैं। अभी entrepreneurship के साथ जो इतना प्रॉब्लम है इंडिया में, और in a different way वो पीयूष गोयल जी ने बोला था, it may have been interpreted in multiple ways, but I thought that what he was simply saying is कि copycat मत शुरू करो यार, कुछ नया करो, जो सब लोग कर रहे हैं वो मत करो, उसके आगे भी सोचो। तो आजकल क्या हो रहा है कि इतनी सारी डिलीवरी सर्विसेज, इतनी सारी मिल्क प्रोडक्शन, इतनी सारे सब कुछ एक दूसरे की देखा देखी लोग कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट क्यूरियोसिटी, दैट लर्निंग इज व्हाट इज गोइंग टू मेक यू स्टैंड आउट in today's world and in the future, especially as people are talking about this AI business and so on. I was about to come. You have studied robotics. जब आर भी नहीं पता था कैसे होगा robotics. Like, I'll give you an example. So I did economics honors back in 2003. Same 9th में economics लिया, computer नहीं लिया, economics में रट्टा मारा, टॉप करने लगे,
10th में इकोनॉमिक्स में फिर टॉप कर दिया ICSE में. आपने टॉप किया तो वी आर मेंट फॉर दिस. बिल्कुल राइट, अब तो मेंट फॉर दिस है. ये तो मेरा तो नाक का सवाल. ओरिएंटेशन नहीं ओरिएंटेशन है. देखो मैं टॉप करो तो आई हैव अ नेचुरल एबिलिटी. यस यस 11 12 भी कर दी, मैथ्स ले ली क्योंकि अब लेना पड़ा. हाँ DU में बोला था कि economics में होता इकोनॉमिक्स है. के लिए मैथ्स चाहिए तो मैथ्स ले ली. आपने एक और बात बोली कि यार टीचर अच्छा होना बहुत जरूरी है, तो 8 तक मैं मैथ्स में 100 आते थे. 9th में ट्यूशन लगा दिया. उन्होंने ये रहे एग्जाम्पल, ये रहा सोल्यूशन. हाँ. ना मैंने कौन सा पूछा, उन्होंने बताया, पास हो गया, रैंक आ गई. 11 12 में मैथ्स ले तो ली, फर्स्ट ईयर आए तो मैक्रोस तो समझ आ रहा है, माइक्रोस जीरो. एंड देन आई रियलाइज कि ये तो मैं अब उसमें कैलकुलस भी आ गया. हाँ. तो मनी जो था वो तो टॉप. तो फिर रियलाइज किया कि तो इकोनॉमिक्स तो बन ही नहीं पाएगा. ये अच्छा हुआ कि इकोनॉमिक्स बने ही नहीं. तो कुछ दोस्त गोखले गए, कोई कुछ गए, हमने कहा हम भी रट्टा मार के तो हो भी जाता है. राइट, तो दैट इज वेयर आई एम सेइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर एंड ऑल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट. एज यू मेंशन, फिर रोबोटिक, मतलब completing my point that that's how my journey was. I'm a perfect, in fact my ex handle is Mr. Accidental CEO. It just happened, and in fact I come from a background which is entrepreneur background, SME and Almiras and all that. But मेरा सपना अलग था कि हम तो पापा मम्मी के साथ भी कहीं घूमने नहीं गए. वो दुकान में बैठते थे, हम फैक्ट्री में बैठते थे, कहीं नहीं. तो मैं तो सैटरडे आई विल डू बैंकिंग, इसी पे जाऊँगा, सैटरडे छुट्टी होगी, टाई लगाऊंगा, एंड दैट शुड बी द लाइफ. बट समहाउ वो एक DNA होता है, वो था कहीं. बट so this was my journey. Your journey, again, I can see that you went with the flow, but wherever you were putting your best and you were aiming for the best. That led to better circle, better network. Another thing which I always say that whether you go abroad or don't go abroad, but मेरठ में दिल्ली आओ तो मुंबई जाओ. मुंबई घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है. And I guess that's also happened with you. Then where it strike you to do MS and then PhD? Because US में गए थे तो आप नौकरी भी कर सकते थे. हाँ, वो भी IIT कानपुर के बाद एंड UPenn के बाद. हाँ, तो उसके लिए थोड़ा पहले जाना पड़ेगा, इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़. तो IIT में जैसे मैंने बताया, मेरी कॉन्फिडेंस इन माय ओन एबिलिटीज़ काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि JEE में जब क्वालिफाई तो कर गया, लेकिन जब कानपुर पहुंचा तो रैंक बहुत लो थी कानपुर के लिए. तो वहाँ लगा कि यार मैं तो बुद्धू हूँ यार, ये तो सब लोग इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, मैं कहाँ आ गया यहाँ पे. लेकिन चलो अब किसी तरह निकालना है, क्योंकि कानपुर का ठप्पा तो है. लेकिन वहाँ पे ये लगता था कि मेरे साथ जो लोग हैं, जिनके रैंक्स बहुत अच्छे हैं, पहले से ही दिमाग में आ जाता है कि यार मेरा 994 और यहाँ पे ऑल इंडिया 1 मेरे कॉरिडोर में साथ में है, सुनील आर्या, जिससे अभी भी दोस्ती है. तो मैं तो कंपैरिजन में हूँ ही नहीं. तो पहले दिन से ही आप अपने को राइट ऑफ कर देते हो. फिर क्या होता है कि कुछ जो फेलियर्स होती हैं, पहला क्विज दिया, क्विज कभी किया नहीं था स्कूल में, उसमें 0 आ गया, तो लगा कि यार ये तो मतलब कर जा गए. हाँ, वी डोंट बिलोंग. फिर वो बीमार हो गए, फिर ग्रेड्स बुरी आ गई. ये पता नहीं था कि सेमेस्टर ड्रॉप करके फिर से लेना चाहिए था, तब अच्छी ग्रेड्स आती. लेकिन वो सब C's and D's आ गई. अब वो ग्रेड कार्ड पर आ गई, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते थे. GPA हो गया कुछ 4.8 या ऐसा पहले सेमेस्टर में, जो कि बहुत ही शर्मनाक था. तो ये सब की वजह से इट वाज अ स्ट्रगल टू वर्क योर वे अप एकेडमिकली. तो मैंने सोचा कि यार कंप्यूटर साइंस का वो एक प्रोग्रामिंग का कोर्स कर लिया, तो प्रोग्रामिंग में बड़ा मज़ा आया. और उसकी वजह से मुझे बीटेक प्रोजेक्ट करना होता है वहाँ पे इंजीनियरिंग में, लास्ट ईयर में एक प्रोजेक्ट करना पड़ता है. तो उसमें वो प्रोग्रामिंग से मैंने बड़े एक अच्छी प्रोजेक्ट बनाई और मेरे प्रोफेसर्स बड़े खुश थे मुझसे. लेकिन उसकी वजह से मुझे नौकरी भी मिल गई. और फादर ने लगाया हुआ था कि 10,000 रुपये की नौकरी लेनी है, जो आप बात कर रहे थे कि टाई लगा के जाएंगे. तो मैंने लगा, नौकरी भी मिल गई. और ये भी था कि वो नौकरी सॉफ्टवेयर की मिली, जो मुझे अमेरिका ले जाती. वो तो वीज़ा बनाने के लिए उन्हें बोल दिया. उस समय तो बूम था, तो आपको लेते थे सिवरी में, बम्बई में ट्रेनिंग करते थे 2-3 महीने का और भेज देते थे. तो मैं तो बड़ा खुश था. लेकिन ये हमारे 2 प्रोफेसर्स थे जिन्होंने मुझे कहा कि भैया तुम ये कर रहे हो, लेकिन तुम्हें और पढ़ना चाहिए. मैंने कहा आपका दिमाग ख़राब हो गया है क्या? मेरी ग्रेड्स देखी, मैंने कितने स्ट्रगल से ये 4 साल निकाले हैं, मुझे नहीं पढ़ना. और मैं इंजीनियरिंग तो नहीं करना, सवाल ही नहीं उठता. मैं कभी था नहीं
मुझे ये सब करना पड़ा। कुछ मैनेजमेंट में कर लूँगा, MBA कर लूँगा, लेकिन ये नहीं करना। और अभी तो नौकरी मिली है, मुझे जाने दो अमेरिका। सो दे गॉट आफ्टर मी, और उन्होंने मुझे परसुएड किया कि यूपेन में अप्लाई करो और वहाँ हम तुम्हारी हम रिकमेंडेशन देंगे। और मैं उनमें से एक वहीं से PhD करके आया था। तो तुम मेटलर्जी में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है ना, अच्छा नहीं लगा, चलो मैकेनिकल कर लो, उससे बहुत स्कोप है। तो इस बहाने मैंने अप्लाई किया, हो गया, मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ पे क्या हुआ कि पहुँच तो गया, लेकिन सब लोगों को मेरे बैच में स्कॉलरशिप्स मिली थी। मुझे भी स्कॉलरशिप मिली थी दूसरी जगह मेटलर्जी पढ़ने के लिए। मैंने अप्लाई किया था टू बी ऑन द सेफ साइड, सेम स्ट्रैटेजी, स्प्रे करो सबको चारों तरफ। लेकिन मैं वो पढ़ना नहीं चाहता, तो मैंने उसने लिया, वो कोर्स नहीं सिलेक्ट किया, और ये कोर्स सेलेक्ट करके यूपेन गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लेकिन उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप नहीं दिया। तो मुझे पहले सेमेस्टर के लिए मेरे फादर ने कुछ खेत बेचकर $5,000 मुझे दिया, और मेरी सिस्टर थी वहाँ पे, उसने कहा कि अगर तुमको और पड़ेगा ज़रूरत तो मैं दे दूँगी, तुम आ जाओ। तो मैं 1 साल के मास्टर्स के लिए वहाँ गया। जब वहाँ गया तो पहले सेमेस्टर में ही मुझे बोला गया आप कुछ भी पढ़ो। तो वो जो लव फॉर व्हाट यू डू और डू व्हाट यू लव, वो वाली बात आ गई। तो मैंने इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स कोर्स ले लिया, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर विजन कोर्स ले लिया, और ये चारों कोर्स में मुझे, जो फर्स्ट सेमेस्टर के 4 कोर्सेज थे, उस सब में A आ गए। तो पहले तो मैं मतलब घबरा गया कि यार वही बंदा जिसको C's एंड D's आ रही थी, अब यहाँ पे उसको A आ रहा है। तो इसमें मुझे लगा कि यार ये इजी स्कूल होगा, चलो मैं अच्छी जगह आ गया। मेरी तो मतलब मेरे इंटेलिजेंस से कम ये स्कूल है, तो मैं अच्छा कर सकता हूँ। तब तक क्या हुआ, और यही मज़ा देखिए अमेरिका का, कि अमेरिकन एजुकेशन का, कि पहला उन्होंने मुझे फ्री दे दिया चॉइस कि आप कुछ भी करो, तो दैट अलाउड मी टू पिक। सेकेंड, उन्होंने सरप्राइज कर दिया कि डिपार्टमेंट वाले ने मुझे बुलाया सेमेस्टर के रिजल्ट्स के बाद, वो बोला कि यार हम लोग बड़े शर्मिंदा हैं कि you've done well but we couldn't give you a scholarship and I don't have money to give you a scholarship। I said यार तुमने ये सब बताया क्यों, मुझे और भी बुरा लग रहा है। तो फिर उन्हें 2 हफ्ते बाद बुलाया और कहा कि एक बंदा था जिसको स्कॉलरशिप मिली थी, उसका MIT में एडमिशन हो गया, ट्रांसफ़र करके जा रहा है, वो मनी अवेलेबल है, हम तुम्हें स्कॉलरशिप दे रहे हैं। नाउ ये जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स मिली कि, और हार्डवर्क क्यों कर रहा था, क्योंकि बाप के पैसे से गया था, तो कुडंट वेस्ट दैट मनी। तो हार्डवर्क किया, ग्रेड्स आई, ग्रेड्स की वजह से चॉइस दिया, ग्रेड अच्छी आ गई, स्कॉलरशिप मिल गया, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से रहा कि हाँ यार तो मैं तो कुछ हूँ भी। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर भी अच्छा हो गया, फिर वो मास्टर्स करने लगा। तो हुआ क्या था कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो कंप्यूटर विजन का कोर्स था, उसमें एक लेडी थी जो पढ़ा रही थी, वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की चेयरमैन थी, और कंप्यूटर विजन की, कंप्यूटर देखता कैसे है, उसकी वो पायनियर थी एक। सो आई सेड ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो मैं उनके पीछे पड़ गया कि मुझे आपके साथ काम करना है। एंड बाय नाउ द इंटरेस्ट, एक जो रुचि बनने की बात होती है, वो बनने लगा था। आई सेड मुझे आपके साथ PhD करनी है। वो क्या यार तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेटा से आए हो, कंप्यूटर साइंस में PhD करो, क्या मजाक कर रहे हो। बट फिर यही होता है, यू नो, द वर्ल्ड राइजेस अप एंड पीपल आर, वो जो 2 प्रोफेसर्स ने एनकरेज किया, और फिर इन्होंने मुझे कहा कि अच्छा, एक दिन कहा सडनली कि अच्छा ठीक है आ जाओ। एंड शी वेंट टू द मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड कन्विंस देम कि कैसे मुझे भी उनके थ्रू PhD, आई एम प्रोबेबली द ओनली पर्सन शी एवर हैड, शी हैड 50 PhD स्टूडेंट्स, आई वाज द ओनली पर्सन शी वाज एबल टू गेट हु was a non-computer science PhD under her. And by the way, I still am so grateful to her कि I still am in touch with her. Last summer उनके साथ मैं वेकेशन पे उनके चेकोस्लोवाकिया गया था, और उनके ऊपर एक मैं किताब लिखवा रहा हूँ। So such people really then give you the chance, right? अगर वो नहीं होती तो मैं PhD नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज मैंने ये भी डिसाइड किया था कि PhD करना है तो इन्हीं के साथ करना है, नहीं तो नहीं करना है, बाकी सब मुझे इंटरेस्ट नहीं है। Because by then you had started believing in this fact कि if you do what you love, then you'll do well. Right? So that realization came there. यहाँ तो चांस ही नहीं मिला ना वो अपने आप को भी प्रूव करने का। So that was the journey which led robotics. Yeah.
आपने कहा इंडिया में चांस नहीं मिला या फिर अवेयरनेस नहीं हुई या अपने को रिफ्लेक्शन नहीं हुआ. अगर कोई सीडी ला रहा है तो वो बहुत ही कम होता है. जैसे आपके केस में हो गया कि आपको 2 प्रोफेसर ने पुश किया एंड आई एम श्योर उन्होंने कुछ देखा होगा आप में एंड विच यू आर अंडर प्लेइंग. नहीं, वो प्रोजेक्ट में मैंने अच्छा काम प्रोजेक्ट किया. में अच्छा किया था. बट आप मेटलर्जी करके आपने एमटेक किया, एमएससी किया एंड वहाँ से रोबोटिक्स, वो भी एमएससी आपने किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही मैकेनिकल है, और में. वो रोबोटिक्स भी मैकेनिकल का ही पार्ट था, लेकिन वो उसका नेचर बहुत कंप्यूटर साइंटिस्ट वाला था क्योंकि मेरी एडवाइजर वहाँ थी. तो हाँ, मेरी डिसिप्लिन्स बदलती रही थ्रू आउट. तो फंडामेंटल मतलब जो मुझे समझ आ रहा है, जो हम मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स नहीं फोकस करते कि शुरू में कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मार्क्स के पीछे मत. बिल्कुल. ओफ, ये तो मतलब बहुत ही, वही तो लर्निंग एंड डोंट स्टडी वाली बात है कि स्टडी, देखो मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, लेकिन पढ़ के समझ लो. मैं तो समझता हूँ कि ये जो खान एकेडमी के जो लेसन्स हैं वो सबको करने चाहिए, इवन इन कॉलेज. राइट राइट. समटाइम्स यू रियलाइज कि स्कूल का कॉन्सेप्ट मुझे याद नहीं है, समझ में नहीं है, उसको जाके पढ़ के फिर अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो. That is really the way to build your base. That's a real education. That is your real and it is not. आपने डिफरेंशिएशन और कैलकुलस की बात की इकोनॉमिक्स में. इट इज नॉट कि आप आज को मैं अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड दे दूं तो आप नहीं करोगे, बट उससे वो मेंटल एक्सरसाइज होता है, वो मसल बनता है, राइट? नहीं, क्योंकि एक एंड उसकी फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हो जाती हैं कि अगर किसी कोई प्रॉब्लम आपको दे जो आप जिसमें आपको ट्रेनिंग नहीं मिली है, तो उसको कैसे अप्रोच करोगे? राइट, एब्सोल्युटली. You don't get phased by it. I'll give you an example and probably not try to flaunt. Right. But I mean, why not? No, you I'm should. I'm getting a person from ISB, so I got a chance to adjust. So last few years I'm very clear. Every year I need to learn something new, and by virtue of running a decently okay company, I know course अब 3 लाख का 30 लाख का तो कर लेंगे. So I got this ISB से अपना AI leadership program, and that's how I started my adaptation of AI. Now we have AI lab within University Living, creating Perfect. AI agents and whatnot. Fantastic. Right? But started from there, right? And hence I say the biggest investment is education, right? And where I'm coming, and I'll come back to your robotic journey because वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. मैं ये भी क्वेश्चन करता हूँ कि in today's world, when you have AI, when you have YouTube tutorials, Khan Academy and all, why someone need to go to UPenn or MIT or even Ashoka to spend 30 lakhs or 50 lakhs to get formal education? सबके लिए नहीं है, लेकिन जो कर सकते हैं क्यों नहीं? सबके लिए क्यों नहीं है? सबके लिए इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो डिजायर नहीं है, वो कमिटमेंट नहीं है, सेल्फ लर्निंग नहीं हो पाता, अगर हाँ, तो फिर वही प्रॉब्लम है ना कि कई ऐसे लोग हैं जिनको उस समय फिर कुछ और करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो किसी भी कोर्स में एनरोल कर लेते हैं, फिर वो 3-4 साल वेस्ट कर देते हैं, पढ़ाई भी नहीं होती, कुछ सीखते भी नहीं, भी लगा, और उनको पैसा भी लग गया और कुछ आगे नहीं बढ़ पाए. तो देखिए, कॉलेज एजुकेशन वाज नेवर मेंट फॉर एवरीबॉडी. हमारे ही देश में ये शुरू हुआ था जब तक्षशिला बना था, और तक्षशिला 4,500 साल पहले बना था. 4,500, am I right? हाँ, 4,000 years ago, 3,000, 4,000 years ago तक्षशिला पहले बना था. वहाँ भी यही कॉन्सेप्ट था. सब लोग कॉलेज थोड़े जाते थे. वो लोग जाते थे जिनको अपने को एक्सप्लोर करना था, जिनको अपने पेरेंटल और फैमिली प्रोफेशन से आगे निकलना था, कुछ और नया करने के लिए. तो यू आर एब्सोल्युटली राइट. कॉलेज एजुकेशन हमने अब बना दिया है कि ये कॉलेज के बिना नौकरी नहीं मिलेगी. ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है. जैसे मैंने कहा, अगर आप एक कंप्यूटर साइंस का कोर्स करा दो किसी को, अगर रियली आज के दिन में सब कुछ कह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग इज अंडर थ्रेट एंड ऑल दैट, लेकिन मैं कहता हूँ कि ठीक है, प्रोग्रामिंग AI कर लेगा, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, या थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा के अगर AI ही पढ़ा दो सबको स्कूल के बाद, तो बहुत लोगों को कॉलेज आने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना, सबको कॉलेज आने की जरूरत नहीं है, लेकिन
जो लोग अपने को ग्रो कर सकते हैं, जो एब्जॉर्ब करके कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स ही बढ़ गई है. क्लाइमेट चेंज के लिए सॉल्व करना है, उसके लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी. मॉडलिंग करने के लिए कैलकुलस अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स सीखना पड़ेगा. तो कुछ लोग हमें चाहिए जो टफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके अगर हमको आगे बढ़ना है, नहीं तो प्लैनेट विल बर्न. अगर कोई ऑल्टरनेटिव फ्यूल का या बैटरी टेक्नोलॉजी में काम नहीं करेगा तो आवर होल प्लैनेट इज फिनिश्ड, राइट. तो उसके लिए कॉलेज एजुकेशन, रिसर्च, हाई एंड करना पड़ेगा, लेकिन हमें कुछ ही लोग चाहिए जो उस लेवल पे काम कर सके. तो आप एडुकेटर भी हो एंड देन यू आर मोर ऑफ एकेडमिशियन माइंडसेट विद entrepreneurship mindset. Generally, it's a very rare, if I say breed, if I can say it, it's a very rare combination wherein या तो academician बन जाते हो, PhD बन जाते हो, and then not many people able to take even calculated risk. आप कहते हो रिस्क नहीं लिया आपने, पर calculated risk भी लिया, right? ये पहले आपकी जर्नी खत्म करके रोबोटिक्स में आएंगे, and then I would like you to answer this wherein PhD डॉक्टर होने के बाद, कुशन US होने के बाद, आपको वो करने को मिला जो आपको अच्छा लगने लगा. उसका फिर आपने एंटरप्रेन्योरशिप करके हड़प्पा एंड वेदिका एंड तो नाम इतने सारे, ISB, अशोका, अभी भी आप कुछ ना कुछ नया कर रहे हो जो हम बात करेंगे अभी. बट लाइक कहाँ से आया ये एजुकेशन के बाद? इवन कैलकुलेट रिस्क, यू आर सेइंग रिस्क बट डेफिनेटली यू टेकन रिस्क. देखिए उसमें कई बार क्या होता है कि जिंदगी में सरप्राइजेज आती हैं. तो सरप्राइजेज मेक यू पॉज एंड देन यू से व्हाट एम आई डूइंग हियर, व्हाट हैव आई लर्नड फ्रॉम दिस, एंड व्हाट हैज इट टॉट मी अबाउट व्हाट नॉट टू डू एंड वेयर टू गो. सो व्हाइल आई एंजॉयड माई PhD थरली, जब मैं एकेडेमिया में गया तो उस समय का माहौल ये था कि एकेडमिक्स में सक्सेसफुल होने के लिए यू हैड टू गो डीप इनटू अ टॉपिक एंड रियली स्टे विद दैट टॉपिक फॉर अ लॉन्ग टाइम, 4, 5, 6 years. Go deep. Publish results that came out in the top journals. That was what was required for success. Of course, you teach and all that, but to be not just a teacher. तो जब मैं निकल के आया PhD से तो मेरी अच्छी पब्लिकेशंस बन गई थी, अच्छी जगह पब्लिश हुई थी, और वो लेकिन वो उस पर मैंने डिलिबरेटली एफर्ट नहीं किया, बड़ा एफर्टलेस था. जो भी काम किया वो अच्छा हो गया और वो पब्लिश हो गया. अब जो एकदम जब ये रेजिमेंट में काम करना था तो वो उसमें मुझे बिल्कुल ही मज़ा नहीं आ रहा था. एंड आई डिडंट रियलाइज वाई, क्योंकि मेरा जो लैब का माहौल था वो बहुत अलग था. तो ये जो कॉन्ट्रास्ट हो गया तो उसमें मैं बहुत डीमोटिवेट हो गया. और उस यूनिवर्सिटी में भी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस थी जिससे मैं खुश नहीं था. लैब में उस प्रोफेसर के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थी. तो उस समय मुझे लगने लगा कि देखो ये पढ़ाई तो मैंने कर ली, लेकिन मैं कट आउट नहीं हूँ इसके लिए, ये मुझे मज़ा नहीं आएगा. और जिंदगी भर. कब की बात? आप कितने साल के जब? मैं इस समय 27 साल का था, 27 years. So you've been studying till like formal education? 22 BTech, 5 साल PhD, तो 27 साल का था. और इस नौकरी में गया और पहले ही साल धक्के लगने लगे. एंड सडनली यू रियलाइज कि यार मैंने तो इतने समय लगा दिया ये सब करने में इसी के लिए, और ये अच्छा नहीं लग रहा है. ये तो गलत हो गया. तो उस समय मैं थोड़ा सा हिला हुआ था कुछ समय तक कि क्या करूं कैसे करूं. शादी हो गई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी. तो उस समय क्या हुआ कि लक फिर वही हुआ. मैं तो ये था कि मैं ट्राई मार रहा था. तो ट्राई मारने में पता चला कि ये मैकेंजी एंड कंपनी, जिसके बारे में मैं जानता था कि वो MBAs रिक्रूट करती थी, लेकिन अब पता चला कि ये लोग नॉन MBAs रिक्रूट कर रहे हैं और उसमें स्पेशली PhDs को रिक्रूट. तो उसमें मैंने अप्लाई किया और बहुत मेहनत करने के बाद 9 इंटरव्यूज़ हुए, 3 राउंड, ये सब में मेरा हो गया. तो मुझे मैकेंजी की नौकरी मिल गई. जो MBAs बड़े मार पीट करके वो चाहते हैं, वो मुझे साइड से कहो मिल गया, बिकॉज
अपॉर्चुनिटी थी और उस समय उन्होंने एक ये शुरू किया था नॉन MBA रिक्रूटिंग। वहाँ फिर मुझे मौका मिल गया फॉर टू शाइन, और वो इसलिए क्योंकि मैं उस समय मैंने रियलाइज किया कि मैं एक चीज पे काम नहीं करना चाहता हूँ। कंसल्टिंग में नए नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो कभी पल्प एंड पेपर पे काम कर रहा हूँ, कभी स्टील पे काम कर रहा हूँ, कभी बैंकिंग पे काम कर रहा हूँ, कभी मीडिया पे काम कर रहा हूँ, कभी इंटरनेट पे काम कर रहा हूँ, कभी स्पेस पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने रोबोटिक्स में PhD की थी। मेरी पहले ही असाइनमेंट उन्होंने लगा दी, जो कनाडा के जो रोबोटिक स्पेस की कंपनी थी जिसमें रोबोटिक्स का बहुत था। तो इस तरह से जो वैरायटी मिलने लगा, फिर उसमें नए नए कंट्रीज जाने का मौका, US में बहुत काम किया, हांगकांग में काम किया, नॉर्वे में काम किया। तो अब आई बिकेम इट वाज लाइक हर रोज कुछ नया करने को मिल रहा है। तो और वो मेरी अब देखने से लगता है कि दैट वाज ऑलवेज इन माय DNA कि कुछ अलग अलग डिफरेंट करते रहो। तो वो 13 साल निकल गए यही करते करते, और उससे फिर इंडिया आने का मौका मिल गया। तो दैट वाज एक तरह से मैंने देखा है कि जब भी कुछ प्लान करके मैंने किया है तो वो वर्कआउट नहीं किया है, लेकिन उसके बाद जो नई चीज आई विदाउट प्लानिंग फॉर इट, पहले से बेटर हुई। उसमें जाके फिर बिकॉज यू स्टार्ट विद जीरो एक्सपेक्टेशन एंड यू वर्क हार्ड, you want to prove something and you have no choice because you have to make it work, then good things happened. What were your like? Always na, everyone has their own strengths. Like, see, for me, I'm hands-on. I know that if someone is smarter than me, I'll study or I'll spend 2 hours, 4 hours extra. उससे बेटर नहीं होगा कोई बात नहीं, उससे बराबर तो आ जाऊंगा। दैट्स माई सुपर पावर। आई मीन वेरी क्लियर। मैंने बना लिया अपने माइंड के कि यार ठीक है, IIT चलो कोई बात नहीं, वो 1 घंटा पढ़ेगा, मैं 5 घंटे पढ़ लूँगा। राइट, उन्हें लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिख के याद करूँगा। ठीक है, राइट। So what were your superpowers which over a period of time you build up or This is very natural interesting ability? because मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने रियलाइज कि एक मेरा सुपर पावर था कि आई कुड डू डिफरेंट थिंग्स। कई लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, जो मुझे नेचुरली सेम सुपर पावर आ जाता है। मेरे साथ भी होता है, और ये इसलिए भी है कि प्रॉब्ली अटेंशन स्पैन कम है, क्योंकि बोरिंग हो। हाँ, आपसे बात करो, सोचो अगला वाला क्या करूँगा। हाँ, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। तो मैं बोर नहीं होता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मुझे कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए बियॉन्ड जो एक चीज। हाँ, एक मतलब आपको थाली पसंद है वजन, हाँ, एक सब्जी। हाँ, बिल्कुल। राइट। द सेकेंड थिंग दैट आई रियलाइज, और ये आप चूंकि अपने उसकी बात कर रहे थे कि IIM नहीं हो तो क्या मैं, तो एक तो है कि आप ज़्यादा वर्क कर सकते हो हार्ड, बट दूसरा मैंने ये भी रियलाइज किया कि यू कैन ऑल्सो वर्क स्मार्ट बाय लेवरेजिंग योर सुपर पावर्स। तो McKinsey में बड़ा कंपेटिटिव था इन सेंस कि सब लोग बहुत ही दिग्गज थे। राइट। तो पहले तो मुझे लगता था वही इम्पोस्टर सिंड्रोम कि भैया मेरे पास MBA नहीं है, मुझे तो कैश और मनी का समझ ही नहीं आता कुछ, मैं तो बड़ा ही नर्डी इंजीनियर था और बिल्कुल ही मतलब। तो देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि कंसल्टिंग इज अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट। उसमें तो आपको क्लाइंट के साथ डील करना है, और मैं ये भी जानता था कि आई स्टिल हेट कॉन्फ्लिक्ट लाइक एवरीबडी डज, बट कॉन्फ्लिक्ट में अगर आप मुझे डाल दीजिए तो फिर मैं काफ़ी हद तक संभाल ले रहा था। और क्लाइंट के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो सडनली प्रमथ बिकेम दिस पीपल पर्सन, क्लाइंट पर्सन। और इनफैक्ट लोग थोड़ा सा, आई नो कि मेरे असेसमेंट्स वगैरह वहाँ तो बहुत फॉर्मल फीडबैक, तो कई बार होता था कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे लगता था यार PhD की हुई है रोबोटिक्स में, मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो ठीक है। तो पहले तो मुझे लगता था कि और मेहनत करो और मेहनत करो और मेहनत करो, लेकिन कई बार ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि एक रेपुटेशन बन जाती है, तो लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक नहीं है। तो मैंने भी सोचा कि यार ठीक है यार, लेकिन और लोगों की पीपल स्किल्स तो मेरे जैसे नहीं है, तो इसी को पुश करो। तो उससे मुझे दैट रियलाइजेशन ऑल्सो, द क्वेश्चन यू आर आस्किंग कि आफ्टर ऑल मैं दूसरों से कहाँ बेटर हूँ, कुछ तो होगा जो मैं दूसरों से बेटर होता, तो उस पर फोकस करो। एंड उसके थ्रू तो होता क्या था कि जब मैंने बोला कि ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी जैसे नहीं है,
तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा? मैं अपनी पीपल स्किल्स को यूज़ करूँगा टू गेट बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर्स टू वर्क फॉर मी हु आर मच स्मार्टर देन इवन यू, right. and then I will show you that I can come up with better answers. The other thing is that I became a very big master of the problem solving process, because it's not just the content, right? The content and the process have to come together. So you realize कि problem solving को आप split कर दो into two. एक होता है कि मतलब रियल ब्रेन से उसके सोल्यूशन निकालेगा, दूसरा है कि अगर आप प्रोसेस फॉलो करो तो अपने आप सोल्यूशन निकल आ जाएगा, और अगर आप अच्छे लोगों को लगाए हो और प्रोसेस भी अच्छा है तो निकल ही आएगा सोल्यूशन, अगर आप खुद नहीं कर सकते हो। तो ये सब जुगाड़ करके you solve for, you take your superpower to make up for your gap, right? Which is exactly what you're asking. So I think dealing with people has both been a strength and also sometimes a weakness, because you get carried away, you are too people dependent, but that has always given me the extra. And how did you build these people management skills? Because mostly, as you mentioned, you were a nerdy engineer. You were learning machines and books, and आप आते भी एक नेटवर्क से जहाँ पे आप साहित्यकार थे, या you were better into liberal arts and what not. ये people management skills कहाँ बनी? दो चीजें, I think एक तो family, because being the youngest, तो मैं I'm a good listener. मैं बहुत पेशेंटली, मतलब मुझे याद है कि मैं जब बचपन में, जितने लोग मेरे अराउंड थे वो बहुत मच ओल्डर थे, तो वो बच्चे की तरह मुझसे बात करते थे, लेकिन आई यूज्ड टू फील कि ये लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट टाइम ट्राइंग टू लिसन एंड अंडरस्टैंड एंड रिलेट। तो उससे क्या हुआ है कि आई एम अ वेरी पेशेंट पर्सन। आप बोलते रहोगे, यहाँ पे आप मुझसे बुलवा रहे हो, लेकिन आई कैन एक्चुअली सिट हियर एंड जस्ट लिसन टू यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। जिस तरह से आप, यू हैव टू बी वेरी गुड लिसनर व्हेन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। आई डोंट हैव टू लिसन टू मच व्हेन आई एम टॉकिंग, बट टू बी, सो आई कैन डू व्हाट यू आर डूइंग क्वाइट वेल, एंड दैट came from being the youngest, and so that was there. But I also realized that people, ये McKinsey में मैंने सीखा कि people want you to be transparent and direct, but because I was also a good listener, I think I can be direct and transparent without being rude. So that combination has worked well for me, at least most of the time. Recently somebody actually walked out of a meeting with me for the first time in my life, so I said chalo 60 साल बाद हुआ, कोई बात नहीं, but the truth is that you have to, I think the people thing for me is really that कि मूल तौर पे what you have to do is be able to respect people, respect everybody. तो ये सब मैंने कंसल्टिंग में सीखा कि देखो, क्लाइंट्स के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट होती थी, और बहुत कभी कभी क्लाइंट्स बहुत रूड हो जाते हैं, दे ट्रीट यू लाइक सर्विस प्रोवाइडर। तो आई लर्न कि देखो, प्रॉब्लम और पीपल को सेपरेट कर लो, कोई बुरा नहीं होता, प्रॉब्लम बुरा टफ होता है, हाँ, तो पर्सनलाइज मत करो। नहीं, कई बार लोग बुरे होते हैं, लेकिन अगर अपनी तरफ से तुम ऐसा नहीं सोचो कि यार ये सौरभ इज आस्किंग मी डिफिकल्ट क्वेश्चंस बिकॉज ही इज अ बैड गाय, ही वांट्स टू शो मी बैड, सो ऑन, इंस्टेड ऑफ सेइंग नहीं, ही इज आस्किंग टफ क्वेश्चंस बिकॉज ही वांट्स दिस पॉडकास्ट टू वर्क, ही इज नॉट अ बैड गाय, ही इज ट्राइंग टू गेट द पॉडकास्ट। सो दैट helps a lot in dealing with people, and then helps being direct. Then you are not scared of saying something to Saurabh because you are not worried कि वो मेरी relationship spoil हो जाएगी, because relationship तो जो है सो है, लेकिन I'm confident कि मैं जो बोलूँगा वो सही बोलूँगा और सोच समझ के बोलूँगा. So I think that has really helped build a good relationship, and that happened really during the McKinsey days, dealing with clients and being able to deal with very senior people, dealing with things like layoffs, cost cutting, shutting down of businesses, and so on. I mean, if you see, you have a dream career. St. Michael's, IIT Kanpur, UPenn, then McKinsey, then EPV, right? और ये सब तो होना जरूरी भी है, right? Then you started. When did this starting of building of
you know companies get started like India में आया आप एबीपी के बाद क्या हुआ ना कि वो और ABP क्यों ज्वाइन किया आपने नहीं, क्योंकि McKinsey में मैं टायर्ड होने लगा था फिर 13 साल हो गए। नहीं, और उस समय क्या हुआ था कि मैं ISB प्रोजेक्ट्स में काम करना, ISB बनाने में लग गया था. दैट स्टार्टेड लाइक अ McKinsey प्रोजेक्ट, लेकिन अनलाइक कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स वो एक्चुअली बनाने का प्रोजेक्ट था. वो डू था, केवल थिंक नहीं था. तो उस समय मैंने डिस्कवर किया कि वो जो पुरानी डूइंग थी बचपन की, एंड रोबोटिक्स में भी जो मेरा काम था वो सारा एक्सपेरिमेंटल था. तो मुझे डिज़ाइन करके बनाना पड़ा था चीज़ें, और उसमें मुझे बहुत बड़ा मज़ा आया था. तो अब जब ISB बनने लगा तो देन आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग दैट हाई ऑफ डूइंग, एंड देन देयर ऑल्सो आई गॉट मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड ISB from the board because they saw me doing. I didn't realize, but they were seeing कि ये बंदा ये तो कर रहा है, ये तो साइट पे जा रहा है, वहाँ पे खुदवा रहा है, वो बिल्डिंग बनवा रहा है, लोगों को हायर कर रहा है. एंड देन जब मौका आया डीन का, और वो डीन जो थे वो नहीं मिले, वो एक अलग स्टोरी है, तो मैं डीन बन गया. तो एक साल आई वॉज जस्ट रनिंग. एंड यू नो स्टार्टअप्स में तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, उस समय भी हमारे साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स थी. एक साल वॉज full of challenges. Which year was this? And let's go more deeper. 2001 to 2002. तो मैं एक साल वहाँ डीन बन के गया McKinsey से सबैटिकल लेके सेकंडमेंट पे. तो जब मैं वापस आया तो मुझे लगा कि अरे ये तो मतलब ये मैं 12 साल से काम कर रहा था यहाँ, लेकिन मैं तो केवल एडवाइस कर रहा था लोगों को, लेकिन मज़ा तो आता है ये करने में, जो कि मुझे मालूम ही नहीं था कि ये भी पॉसिबल है. तो बनाना और चलाना ये होता है, राइट? बिकॉज कॉलेज के बाद यू नेवर डिड दैट ना. तो वर्क जो आप वर्क कर रहे हो अपने एज में, वो मुझे मिला ही नहीं करना. तो मैं उस समय डिस्कवर किया मैंने कि क्या होता है काम करना एक्चुअली रियल वर्ल्ड में. क्लाइंट को एडवाइस करना, यू नेवर रियलाइज कि क्या होता है. एडवाइस करना बड़ा आसान है. तो उसके बाद लेकिन फिर मन नहीं लगा, तो देन आई डिसाइडेड टू लीव McKinsey. एंड उस समय आई वाज वर्किंग, ABP वाज अ क्लाइंट ऑफ माइन, एंड मीडिया में मुझे हमेशा इंटरेस्ट थी बिकॉज मेरे फादर की प्रिंटिंग प्रेस, मैगजीन और ये सब. तो और मीडिया में कंसल्टिंग भी बहुत किया था मैंने. तो ऐसा हुआ कि उनको CEO की ज़रूरत थी. मेरे दिमाग में ये सब घूम रहा था. एक दिन उन्होंने ही कहा कि यार तुम ही बन जाओ. आई वाज लाइक मुझे CEO बना देंगे? तो मैंने सोचा बड़ी अच्छी बात है यार, मैं CEO बन जाऊँगा कंपनी का. और मैं उस पर बिलीव भी करता था कि बंगाली न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, उस समय तक उनके साथ कंसल्टिंग में हमने उनकी टीवी चैनल करा दी थी, और एंटरटेनमेंट भी शुरू हो गया था. This ABP न्यूज़? और हाँ, ABP न्यूज़ उस समय स्टार न्यूज़ था. तो वहाँ ज्वाइन कर लिया. लेकिन फिर हुआ क्या कि देन आई रियलाइज़ कि मुझे मज़ा तो बहुत आ रहा था, और बट मैं जो चेंजेस ला रहा था उससे ओनर्स अग्री नहीं कर रहे थे. एक ओनर, तो मुझे लगा कि ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने जा रहे हैं. तो मैंने जल्दी ही वहाँ से, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट, मैं बोला देखिए आपकी कंपनी है, आपके बाप दादों ने बनाया है, मैं इसमें कौन होता हूँ चेंज करने वाला, मुझे माफ़ करो, मैं वापस जाता हूँ. लेकिन उस समय मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ, और वही सेम रियलाइजेशन जो PhD के बाद हुआ था, कि ये मैंने CEO और ये सब तो देख लिया, लेकिन आई हैव बिकम स्पॉइल्ड. मैं तो किसी मालिक के साथ काम ही नहीं करना चाहता, मैं बॉस के साथ काम नहीं करना चाहता. तो कैसे करेंगे, किसके यहाँ जाके काम करूं, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. और ये एरोगेंट साउंड करता है, लेकिन एरोगेंस का बात नहीं थी, अवेयरनेस थी. यार ये मैं कैसे करूं मैं. सो आई वाज रियली वरीड. तो एक्चुअली दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड 9.9. बट इफ यू थिंक अबाउट द सर्कमस्टांसेस इन व्हिच आई स्टार्टेड 9.9, it was completely poor judgment, if you ask me. Because now I can expound about what is entrepreneurship and why you should become an entrepreneur and so on. But I had no idea of what I was getting into. It was just कि चलो यार. And this is age of 40. I am now 27 साल में खत्म किया, 13 साल 43 में तो किया. उसमें एंड इट वाज मोर आउट ऑफ कि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं. जैसे McKinsey में गया कि अब मेरे पास चॉइस ही नहीं है, वैसे यहाँ भी मेरे पास अब चॉइस ही नहीं है, तो कुछ स्टार्टअप कर लो. और कुछ आइडियाज थी वहाँ से. And you did well, you know. I guess कोच. हाँ, अभी तक चल रहा है, तो मतलब एक तरह से चला तो दिया. तो उस समय दैट इज हाउ एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टेड, एंड स्टार्टेड टू रियलाइज कि कुछ एंटरप्रेन्योरियल है मुझ में, जो मैं
आइडिया को Execute बिल्ड करके do करके, एग्जीक्यूट करके, लॉन्च करके, बिल्ड करके स्केल कर सकता हूँ. Is entrepreneurship for everyone? नो, Clear no, right? क्लियर नो. Why? यार ये ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं कर सकता Right, कि हम right. लोग एंटरप्रेन्योर हैं इसलिए और Right, लोग right, नहीं right. कर Yeah, सकते. yeah, ऐसी yeah, बात yeah, नहीं है. yeah. कर सकते हैं सब लोग, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है. बहुत मैटर करता है कि आप कितनी रिस्क ले सकते हैं. हाउ मच आर यू विलिंग टू, कितना दांव पे लगा सकते हो आप. ये बहुत मैटर करता है. इसीलिए कई लोग कहते हैं कि ओल्डर एज में या मुश्किल हो जाता है, बट करने के लिए तो सब लोग कर सकते हैं. लेकिन और एंटरप्रेन्योरशिप में एक बात और भी है कि आप बिल्कुल अकेले होते हो, बिल्कुल अकेले होते Dead lonely. हो. यू आर फाउंडर, पार्टनर, ये सब ठीक है, नाम जो दो आप, आपके 10 पार्टनर्स लगा दो, लेकिन आप बिल्कुल अकेले हो. Right. So you need to have tremendous resilience. And second thing I will tell you is that entrepreneurship is in itself a profession. It is not कि नौकरी कर रहा हूँ छोड़ के Right. एक Right. Right. वाटर बॉटल की कंपनी शुरू करते हैं, नहीं होगा तो नौकरी कर लेंगे. तब तो नहीं करना चाहिए. कई लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं मैं बन जाऊँ, नहीं होगा तो नौकरी कर लूँगा. आई थिंक यू आर नॉट रेडी, बिकॉज वंस यू आर एन एंटरप्रेन्योर यू विल नेवर गो बैक. Yeah. So are you prepared to be on that journey? Okay. Are you prepared to build a company for 10 years? मुझे लगता है कि इंडिया में अगर कुछ काम की चीज़ करनी है तो 10 साल लगेगा. That's right. आप भी देख रहे होगे अपनी कंपनी, वो कभी स्ट्रगल रुकता नहीं है. Right. तो यू हैव अ चॉइस. आप क्यों करो? नौकरी करो, स्टेबल रहो, पैसे कमाओ, ग्रो करो. वैसे भी लोग करते हैं. तो Absolutely. Absolutely. सिविल सर्विसेज में जाओ, डॉक्टर बनो. तो I There are think lots of way to make money. Yes. So, and lead a good life. So it's not Yeah, like, but yeah. therefore, just like, it's not, medicine is not for everyone, engineering is not No, for no, everyone, this is 100% also not not for everyone. And I think that's very important to Understand. understand Yeah. that. And then talked about Huh. people. In fact, why I asked, and I asked this question: why education? Why entrepreneurship? Because it become a very with all the funding news being published हाँ, on your people. face, Shark Tank coming on. अभी एक बड़ा अच्छा Shark Tank का एक कॉन्ट्रेरियन जो एक एड चल रहा है, अच्छा. कि हाँ तुम तो काम करो सो दैट तुम्हारे बॉस अमीर बने, बिकता है, राइट. बट देन it's not meant for everyone. In fact, I met so many people, but there was one team member of mine, very good, he was a business development, very good guy, was a go-getter, and I'm like, यार ये तो entrepreneurship करेगा, तो MBA मतलब ये करेगा, कहीं ना insecurity भी थी, क्या इतना कुछ सिखा रहे हैं, साथ करे तो साथ में खड़ा होगा. And one day I asked कि अमन तुझे नहीं करना है स्टार्ट? कहता नहीं. And it was very clear, नहीं. मैं क्यों? कहता मुझे अपने वीकेंड नहीं खराब करने. हाँ. And I respect that guy. At least it's clear. He's clear. Absolutely. मुझे नहीं 40 लोगों के लिए, 400 लोगों के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है. मुझे अपने, मैं मंडे से फ्राइडे क्लियर काम करूँ, अच्छा काम करूँगा, राइट. एंड प्रॉब्ली आपसे ज़्यादा सैलरी भी लूँगा, राइट. बट बिल्कुल. मैं हम क्लियर हूँ. एंड आई एम लाइक, इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए. एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट मेंट फॉर एवरीवन. एवरीवन कैन बी एंटरप्रेन्योर, बट नॉट मेंट फॉर एवरीवन. एंड Agreed. you need to have lots of trade off, and you need to have long term vision, और vision होना हो वही जर्नी में आप, हाँ, sustainable resilience होनी चाहिए. resilience होनी चाहिए. तो फिर हड़प्पा कैसे हुआ, and what was हड़प्पा into? नहीं तो हुआ क्या कि 9.9 हुआ आपका. 9.9 चल रहा था, तो मुझे लगा कि मेरे पास एक और कुछ नया करने का फितूर कि अभी भी फितूर है, या वन थिंग लेफ्ट इन मी. तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था, और उसमें मैंने 2 बड़े आइडियाज़ जो मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं उनको मैंने कंबाइन किया. एक तो था कि मैं बहुत बिलीवर हूँ इन टेक्नोलॉजी, एंड आई थिंक ओनली टेक्नोलॉजी कैन सॉल्व आवर एजुकेशन प्रॉब्लम्स गिवन द स्केल ऑफ द चैलेंज इन इंडिया. इसके बारे में मैंने कई बार बात भी की है. लोग कहते हैं कि अरे टेक्नोलॉजी से होगा तो कैसे होगा, कैसे कोई सीखेगा, कैसे होकर पढ़ेगा. मैं इसमें नहीं मानता. अभी तो उसको कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो टेक्नोलॉजी से कुछ तो मिल जाएगा, और कुछ ही नहीं, बहुत कुछ मिल जाएगा. तो एक तो वो था स्ट्रैंड. दूसरी स्ट्रैंड थी कि
लोगों को ज़रूरत है ऑफ व्हाट ब्रॉडली आर लीडरशिप स्किल्स. लीडरशिप बोलते हैं सबको लीडर बनाने की नहीं, बट कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, टीम वर्क, सेल्फ अवेयरनेस, जो कई बार इस डिस्कशन में आई है, वो सबको चाहिए. अगर आप लॉयर हो, ट्रक ड्राइवर हो, कोडर हो, पॉडकास्ट के हो, लिविंग बिजनेस बनाना चाहते हो, दिस आर कोर स्किल. लेकिन वो कोई सिखाता नहीं, बताता नहीं. तो उसको कैसे सिस्टमैटिक वे में एट स्केल लोगों को सिखाया जाए टेक्नोलॉजी को यूज करके, ये दोनों ही टफ प्रॉब्लम्स थी मेरे हिसाब से. तो मैंने सोचा कि ये दोनों टफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें और इसके अराउंड एक बिजनेस बनाएं. लेकिन उस समय मुझे ये भी लग रहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा. मैं इतनी चीज़ों में व्यस्त था कि आई डिडंट थिंक कि ये मैं कभी कर पाऊंगा. मुझे एक अच्छी को फाउंडर एंड सीईओ की ज़रूरत थी. तो वो मुझे मिली श्रेयसी सिंह में, जिनके साथ मैं पहले काम कर चुका था. वो मेरे यहाँ 9.9 में थी और वेदिका में टीम में थी. तो उनके साथ काम करके मुझे लगा कि शी हैज़ द राइट वैल्यूज़ फिट एज अ फाउंडर, को फाउंडर, एंड शी हैज़ द एबिलिटी टू build this, launch, build and take this. So that is how it started. And what year was this? ये 2018 की बात है. तो 17-18 की बात है. और 9.9 स्टार्ट किया. 9.9 मैंने 2007 में शुरू किया था. Which is still running successful. Which is still running. Successful तो नहीं बोलोगे, लेकिन हाँ मतलब profitable. I know because आपका विजन इतने बड़े. हाँ, वो 500 करोड़ की कंपनी कभी नहीं बन पाई, but it was always successful. Right. We employed good people, had good products. 2007 से वो चल रहा है, and then 2018 में आपने हड़प्पा लॉन्च किया, right? So it's sort of early on in a edtech. I can say the edtech. early था, लेकिन edtech कंपनीज आ गई थी. जो आज के अपग्रेड तो आ ही गया था. और ये सब जो बायजूस और वेदांत, K12 में तो सारे आ गए थे. अनअकैडमी, वेदांत, तो ये सब आ गए थे. यूएस में भी सब आ गए थे. लेकिन एक माने में अपने स्पेस में ये बहुत यूनिक कंपनी थी और यूनिक. हाउ डू यू डिफाइन हड़प्पा एजुकेशन? ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन टीचिंग बिहेवियरल स्किल्स, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल स्किल्स. शुरू में ऑनलाइन कहा था, लेकिन इट वाज रियली हाइब्रिड. बाद में अभी भी हाइब्रिड है. हाँ, अब तो अपग्रेड ने खरीद लिया ना, तो अपग्रेड में चला गया. राइट. क्यों बेचा आपने? नहीं, बिल्कुल. देखिए, मुझे मेरी जो मैकिंजी की ट्रेनिंग थी उसमें ये सिखाया गया था कि यू शुडंट गेट टू मैरिड टू. हाँ, यू नो, यू बिल्ड समथिंग, बट इफ समबडी एल्स कैन क्रिएट मोर वैल्यू फ्रॉम व्हाट यू क्रिएटेड, देन दे आर द नेचुरल ओनर्स एंड यू शुड लुक. बट कितना टफ होता है एंटरप्रेन्योर. आपने 7-8 साल बनाया, अभी हाल फिलहाल में 1-1.5 साल की हुआ है ना, 2022 में. हाँ, वो कितना टफ होता है जब आपने बनाया. एंड टफ तो होता है बेचना और अपना डिपार्ट करके. हम लोग आइडेंटिटी बना लेते हैं अपनी. तो वो थोड़ा सा मेरे लिए डिफरेंट था, बिकॉज इट वाज, आई हैड मेनी आइडेंटिटीज. इट वाज अ लिटिल बिट लाइक वन मोर थिंग. बट आई थिंक द डिसीजन वाज आल्सो माय co-founders for whom it was a first big venture. But I think both she and I felt that it was the right time also, because, you know, as entrepreneurs you have to be a little bit the detached. Tough times were coming because of what has happened in the industry. उस तरह से देखें तो it was a very good timing. So we got lucky because there was a big dip coming. And we may have survived that dip, I don't know. It's tough to say. We had good investors. बट 2-3 चीजें हो गई थी. हमारे इन्वेस्टर्स की भी प्लान बदल गई थी. we were backed by Lupa Systems, which was James Murdoch's fund in India. We were the first investment. But he had changed his priority to go from venture to big PE. उन्होंने बोधी ट्री फॉर्म किया उदय शंकर के साथ, और अब वो एलन और नेटवर्क 18 में चले गए. तो उनकी एस्पिरेशंस बदल गई. जब उनको हमने लाया था तो ये था कि वो बनाएंगे हमारे साथ. But he went on to play in a bigger field, in a different play. तो हमें एक और इन्वेस्टर की ज़रूरत थी. That was the time when the market was tanking. Upgrade needed a nice B2B business for, they wanted to get into B2B. So there was a lot of good fit. And we saw that, look, the next few years are going to be tough. So in a way, Harappa is still being built.
It is part of upgrade. Right, And we all now own, it was a swap, so we own equity. So in a way अगर आप देखो, वैल्यू क्रिएशन तो बड़ा ही है हाँ, आपका। and अगर थोड़ी सी philosophical way में देखो तो हड़प्पा अभी भी बन रहा है, हम नहीं बना रहे, लेकिन कोई और बना रहा है। You give a birth, Yeah. and now that baby is being nurtured by probably a teacher, अब वो undergrad postgrad करने अपना निकल गए, बिल्कुल। ऐसे देखे तो there is a lot of pride in what we built, and I think it's also, I find it, I think it's a good thing that as entrepreneurs we've shown that you can detach and say, look, it's the right thing for the business, it's the right thing for the future, and don't get too attached. Whenever Harappa comes, it's all culture, leadership. It talks. I have read and heard about culture is amazing. Harappa. Can you talk a bit about culture, leadership? No, I think look, there's many things have been said about culture. I know you always ask. मैं दीप की interview सुन रहा था just to get familiar with your podcast. I also believe that it's really the DNA that drives success in any company. Some people say it's the smell of the place. He says it's the stuff that is in the back that you don't see. I also think that culture is also, I had heard once that it's how people behave when you are not there, right? When nobody is looking, and but I have a simple mantra also for that over the years, because culture के बहुत सारे statements दिए जा सकते हैं values के, but to me it actually, for me personally, it boils down to just the word respect. Very deep. That can you build a culture where everyone feels respected, whether it is an employee, whether it is a customer, whether it is a partner, whether it is a shareholder, whether it is an investor, do all of them feel respected? Okay, now it may seem that I'm being cute, but if you think of the second order effects of that, it will probably capture any value anybody has ever talked about. If I don't respect a customer, I will not respond in time. So if you want to execute well, if you want to create a great product, you have to do it out of respect of the customer. कि भाई customer बोल रहा है तो सुनो, अगर customer के साथ problem है तो deal करो. Equally, if you respect employees, then you will give them tough feedback. You will say, look, I will have to fire you in 3 months if you don't perform. But you still respect them to say, look, I respect you. Maybe this is not the right place for you, and I'll help you find another job. So culture also kicks in when times are tough. Mainly, when otherwise when times are good, nobody thinks about culture. So culture really kicks in when things don't go well, are not going well. So that's why I'm giving you the tough examples, right? So I think that if you just keep this in mind, to me it's simple. I don't need to remember all the statements, but to say, ki boss, in the way I'm dealing with Saurabh, am I being respectful? In the way I'm addressing issues, am I being respectful? Because other people, young people are going to listen to me talk on this podcast. So I think if you keep that one thing in mind, I think a lot of culture things fall in place. And I think a lot of criticism of the startup environment is because people don't feel respected. And sometimes they don't feel respected by the founder and the entrepreneur because they are so driven. They become alpha. And they're so driven in the name of passion and drive. They end up rubbing people the wrong way. I don't think that is right. So I do think that if you say, look, I'll be passionate, I'll be committed, I'll work weekends, I'll do whatever I can, I will not leave, but I will not compromise on respect. Then you will be, I think most companies will be fine. Very good point. I mean, this is my personal take from this. I believe I get in that mode wherein, and I tell myself that if I don't push, who will? And That's if I need to push beyond mediocrity or even, Yeah. and by virtue of that,
कहीं कहीं वो डिसरिस्पेक्ट वाला होना शुरू हो जाता है, वो बिल्कुल। सरकाजम डिसरिस्पेक्ट हाँ, होने लगता हाँ। है जो आपको पता भी नहीं चलता। आपको पता नहीं चलता। तो आई थिंक Very द good मेन थिंग इज कि और हम लोग को सबको मालूम है कि रिस्पेक्ट क्या चीज होती है, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि जब हम डिसरिस्पेक्टेड हैं तो यू नो एग्जैक्टली कि किस टोन से आप डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो, किस सरकाजम से डिसरिस्पेक्ट हो, सबको मालूम है। एवरी ह्यूमन बीइंग नोस। सो इट्स अ वेरी नाइस टच स्टोन टू रिमाइंड पीपल कि देखो, आई डोंट नीड टू गिव यू ज्ञान और ट्रेनिंग प्रोग्राम। तुम सोच लो कि यू बिहेव अनटू अदर्स एज यू वांट देम टू बिहेव टू यू, बस वही रिस्पेक्ट है। So I think that is the big thing that I would like to share with you about how I think about culture. एक दूसरी बात आपने की culture and leadership. So leadership का मेरा एक definition है कि उसमें 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 कि करके दिखाओ, वॉक द टॉक। नो, एंड यू हैव टू डिलीवर बॉस। लीडरशिप बहुत बड़ी वर्ड है, लेकिन ये नेतागिरी नहीं है। इन वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड बिजनेस इट्स अबाउट गेटिंग स्टफ डन। ओके, नाउ इसको आप साम दाम दंड भेद से करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इसके साथ रिक्वायरमेंट 2 और हैं, जो 2 बाकी चीज़ें हैं लीडरशिप की। एक तो कि यू हैव टू कैरी पीपल अलोंग। आज के दिन में वो लीडरशिप का समय बहुत पहले चला गया जब आप खुद लोन रेंजर यू नो जनरल सौरभ बन के ये करो वो करो, कमांड कंट्रोल तो चला ही गया, लेकिन यू हैव टू रिस्पेक्ट। Right. So you have to build a followership, and followership again will get built because you respect them and develop them. By the way, respect doesn't being nice. It means really pushing people so that they grow also. Yeah. Right. So if people will grow, you'll get them to follow you. They will sign up to go to war with you, and then they will get the job done. So those two are, all 3 are interlinked. Right. So the first is getting it done. Second is carrying people along, giving them respect, giving them opportunities to grow, pushing them to grow and develop. And then the third underpinning, which is not quite obvious, is self-awareness and constant self-growth. That's a more inner leadership trait that you and I both have to deal with if we want to get the first 2 done. Because the biggest barrier to getting it done is ego. Yeah. No, and your limitation. Yeah, that's what you believe. मैं तो CEO मुझे सब आता है। हाँ, बिल्कुल, that's the flip of your. तो आपको अपनी सुपर पावर अगर नहीं मालूम है और आपको नहीं मालूम है कि भैया आप इस एरिया में गड्ढे हो, तो आप नहीं कर पाओगे, काम नहीं करा पाओगे लोगों से। लोग कहेंगे कि यार मुझसे कराने के कर रहे हो, तुमसे तो होता नहीं है। तो आई थिंक दीज 3 थिंग्स का मिक्स है। और मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ इस केस में, ये कोई प्रोफाउंड नहीं है। मैंने 35 साल की उम्र में मुझे बोला गया कि तुम्हारी लीडरशिप स्किल्स अभी ठीक नहीं है। तो मुझे बोला ये लीडरशिप होता क्या है? तो मैंने बहुत इस पर रिसर्च किया और तरह तरह की बुक्स पढ़ी। उस समय पॉडकास्ट नहीं थी, बट बहुत कुछ किया। और मुझसे ये निचोड़ निकाल के यही 3 चीज़ें हैं। जब उसको इफ़ यू कंबाइन इट विथ योर लाइफ एक्सपीरियंस, देन आई थिंक ऑल ऑफ अस गो थ्रू दैट। तो बाय दिस डेफिनेशन, इज योर मदर अ लीडर? आई थिंक शी इज ऑलवेज, राइट? By this definition, is a great academic a leader? Of course he is, even if he or she doesn't have a large team. Right. So I do think that in this definition everybody can be a leader, but people confuse that with lots of these big words, and people list attributes. A leader should be visionary, leader should be this, leader should be that. उसी में हम lost हो जाते हैं। Because as far as I am concerned, लीडरशिप इज़ नॉट समथिंग आई कैन से कि मैं लीडर बन गया। आपको जज करना है कि मैं लीडर हूँ कि नहीं। और अगर आप देखोगे कि लोग जज कैसे करते हैं, तो ये 3 चीज़ों पे जज करते हैं कि उसने किया क्या बॉस। तो आई थिंक यही है कि सी यू कांट से दैट यू आर अ लीडर। लीडरशिप इज समथिंग दैट अदर्स सी इन यू, एंड माई व्यू इज दैट टिपिकली पीपल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट unconsciously also सी कि भैया इसने किया क्या, व्हाट हैज दिस पर्सन डन। उससे आपकी लीडरशिप असेस होती है। एंड सेकेंडली कि हाउ डिड दैट पर्सन बिहेव विथ मी, हाउ डिड दैट पर्सन मेक मी फील। एंड फाइनली ये जो बात बोल रहा है इसको खुद भी मालूम है। इज ही बीइंग ऑथेंटिक, डज ही रियली बिलीव इन दिस? एंड
is he saying something to me that is not true for himself? मुझसे वो करा रहा है जो खुद बिलीव नहीं करता या खुद नहीं कर सकता. He is not willing to make that change, but he wants me to change. Right. So I think all those three things really combine into people assessing whether you are a leader or not in any field, and I think that is really the essence of. Any question you have for me, sir? Any feedback, any suggestion, any tipney, anything? I mean it, because podcast, for me, it should not be one way. You know, so any question you want to ask or any observation? No, I think that it's too early for me to say anything other than I'm very impressed that of what you built. I think your idea is very unique. I think entrepreneurship is about solving problems. You are solving a very real problem that young people in this country have when they go abroad. I had that problem, by the way. I didn't tell you earlier. I was about to ask that. When I went to UPenn, I went to the master's program, and the housing was too expensive, and it was too late, maybe also. How did you find your I found housing by looking at these white papers around campus which had these little tear-offs with the phone number. और मुझे अभी भी याद है कि उसमें भारत का नंबर था, तो लगा कि चलो इंडियन है, तो कॉल किया और उसके साथ रह गए. लेकिन वो वी वर लिविंग इन सच एन अनसेफ प्लेस. आई डिडंट नो नेबरहुड्स. Philadelphia was unsafe. I was actually held up on my porch. First time I saw somebody pointing a gun at me. And उस समय हमें बोला जाता था यूनिवर्सिटी की तरफ से कि वॉलेट में $1-2 हमेशा लेके चलो. तो ये माहौल में सडनली जाना आफ्टर अ प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट ऑफ द कानपुर कैंपस, इट वुड बी ग्रेट टू हैव समबडी जो यहीं से बोले कि भैया तुम आ जाओ, हम तुम्हें देख लेंगे. That's the purpose, sir. That's the purpose. But my question is, you know, you are a academician and you've been building world-class education in India, and lots of my investors, peer groups ask, बच्चा बाहर ही जाएगा, शोका बन रहा है, ओपी जिंदर बन रहा है, एटलेस है, बेनेट है, you know, student will not end up going abroad. What's your view on that? कभी नहीं रुकेगी ये ट्रेंड. Right. Why so? 25 मिलियन बच्चे हर साल इस देश में पैदा हो रहे हैं. 2.5 crores every year for the next 20 years. Right. Same. Right. हायर एजुकेशन का ही बात करो तो हायर एजुकेशन में 1 in 4 is getting into college. 1 in 4. Right. Any college, which is most of it is very poor quality. Right. तो 3 बच्चे, और मैं ही बोल रहा था कि सबको जाने की जरूरत नहीं है, बट Right. दैट इज द यूजुअली ये GER जो बोलते हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज में 60-70% है. मतलब एटलीस्ट 3 people आर स्टडिंग इन कॉलेज. तो मेरे हिसाब से लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ेंगी, लोगों को अवेयरनेस बढ़ेगी, कंट्री अच्छा करेगी. लेकिन अगर हम वो एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो उनको कहीं और जाना पड़ेगा. दूसरी बहुत बड़ी ट्रेंड जो लोग एजुकेशन वाले नहीं समझ रहे हैं, इसकी उन कंट्रीज में इतनी बड़ी डेमोग्राफिक शिफ्ट होने वाली है, उसको डेमोग्राफिक क्लिफ बोलते हैं, कि सडनली वो एज हो गया, जर्मनी में हो गया, फ्रांस में हो गया, यूके में तो हो गया. उनके ट्रीट करो, तो उनकी फैक्ट्रीज खाली पड़ी हुई, वहां पे तुम अपने प्रोडक्ट्स बना लो. इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई शेम नहीं है. Right. तो हाँ, ये ज़रूर है कि हमें वहाँ ज़्यादा खर्चा करना पड़ा है, लेकिन आप यहाँ नहीं बना पाओगे. आप किसी हालत में उतनी क्लासरूम और उतने टीचर्स नहीं ओवर अ टाइम बन जाएंगे एकदम से. नहीं, ओवर अ टाइम भी नहीं हो पाएगा. आप कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि इतनी जल्दी इतनी इंस्टीट्यूशंस. मैं कई बार बोल चुका हूँ कि नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रेस हैव वी हैड टू एजुकेट सो मेनी पीपल सो क्विकली. सो दिस मॉडल डजंट वर्क. तो आप क्या करोगे? आप कहीं और जाके पढ़वाओगे. इसीलिए लोग अभी भी, मतलब राइटिंग इज ऑन द वॉल, लोग यूक्रेन जा रहे हैं, ईरान जा रहे हैं. जब वॉर्स होती हैं तो पता चलता है कहाँ 40,000 बच्चे इंडिया से यूक्रेन में हैं. बिल्कुल. राइट. तो ये ट्रेंड रुकने वाला नहीं है हमारे लाइफ टाइम में. और वहाँ डिमांड भी है, जॉब्स भी वहाँ हैं. आज ही मैं मीटिंग से आ रहा हूँ जहाँ हम नर्सेज, अलाइड हेल्थ वर्कर्स, मेडिकल टेक्नीशियंस, रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस को अब्रॉड भेजने की बात कर रहे हैं. वहाँ पे डिमांड है 10,000, 15,000, 20,000, 30,000. राइट.
तो वो तो यहाँ से लोग जाना है. By the way, that could be another Yeah, yeah. area for you. Yeah. We should talk later. We'll talk, yes. But my point is that there's a huge Demand demand and supply there, imbalance. Yeah. and that there is a supply imbalance locally, demand supply, and there is a demand supply imbalance here, and the two match up. तो Absolutely. इसको कोई रोक ही नहीं सकता. In fact, how I sum it up, you know, we are more of a part of a global mobility. Yes, yes. And mobility used to be 20, almost 1000 years before, and it will be again in 1000. पहले mobility गांव से शहर होती थी, शहर से बड़े शहर हो गया, कंट्री से कंट्री हो गया, अब हो सकता है आगे प्लैनेट से प्लैनेट हो, we never know. भाई, and we have seen it. 60s 70s में जो डॉक्टर्स गए यूएस और यूके में, Right, उनके पास डॉक्टर्स की कमी थी. right. कितने डॉक्टर्स गए वहाँ? उन्होंने एक पूरी एग्जाम बना दी. EFMG या क्या एग्जाम हुआ करता था, मुझे अब भूल गया हूँ उसका नाम. बहुत सुनने को मिलता था इन द 60s 70s, जब डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा है. अब डॉक्टर्स का जाना डिफिकल्ट हो गया Right. यूएस में. Right. सॉफ्टवेयर देख ही लो. अब हेल्थ केयर चाहिए, अब नर्सेज चाहिए, बिल्कुल. ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए लोग जा रहे हैं. हमारे एक फ्रेंड है कनाडा में, उनका फ़ोन आया था कुछ दिन पहले कि यू नो आई वांट कंस्ट्रक्शन फॉर ऑयल एंड गैस, वेरी स्पेसिफिक नीड इन अल्बर्टा एंड कैलगरी. वो क्योंकि आगे रोज बननी है. राइट. ऑयल फील्ड्स भी हैं वहाँ पे. ऑयल फील्ड्स भी है. नो एब्सोल्युटली सर, आई गेस आई एम कॉन्शियस ऑफ योर टाइम. आपने कॉल है, यू नो, एंड वी डू part 2, right, and probably I'll come to your place. Zarur, we'd love to host you, sir. No, but thank you so much for the time, and it's been a great conversation. Thank you so much. मैं बहुत कुछ बोल गया. I hope I didn't say anything that was inappropriate, क्योंकि मैं सोच नहीं रहा था. I didn't know that I didn't think I was on camera because it was such a natural. So यही चाहिए सर. हाँ. You know, planted और बहुत सारे scripted panels, news channels, bites तो होती ही है. हाँ. You know, it should be real. Right, and आज का youth and आज का audience is very 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 smart. You know, मुझे किसी ने बताया था कि आप जितने स्मार्ट हो सकते हो, बट आप कैमरे में आप 2 मिनट 5-10 मिनट के बाद आप रियल हो जाते हो. राइट. तो कैमरा झूठ नहीं बुलाता. बिल्कुल. Right? No, And that was very that's good. No, and you made it happen. So thank you. Like, all credit to the team. You know, and we have another podcast after this. Oh, So oh my. we are becoming a podcast factory, but we are enjoying it. And good. On that note, thank you so much, sir. Thank you, and thank you to everyone, team, each and every audience. You know, I use the same thing that there's so much learnings. You know, I wrap it up. You know, once we get a time before we end this. But thank you for continuing supporting us. You know, the superpower we are not doing for news and views. You know, we are not even looking for monetize it. You know, in fact, now great that we are getting sponsors and all, which is a great testament that we are doing a good work. You know, and you've been giving us the most important currency of your life, which is time. You know, we need to ensure that whether you watch 2 minutes, 5 minutes, 2 hours, it should be worth it. And if you feel we are doing good job, subscribe, share, or like it, because fact यही है, जितना बड़ा followers उतना अच्छा guest, उतना अच्छे गेस्ट उतना अच्छा कंटेंट, जितना अच्छा कंटेंट उतना अच्छा ब्रॉडकास्ट. तो आप जैसे भी सब्सक्राइब मांग लो. मेरा व्यू यही है कि अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें. तो कीप ट्रोलिंग अस, बिकॉज एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ वी डोंट गेट कमेंट्स, वी डोंट गेट फीडबैक, देन वी बिलीव वी आर डूइंग गुड जॉब. बट if we are doing good job, then we should be subscribed. So on that level, please do it. Thank you so much, and thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you very much.